उसका अफसोस हमें भी है, हमें बहुत ज्यादा अफसोस है। और चलिए बढ़िया है। अफसार जी आइए, अफसार जी अपना इंट्रोडक्शन दे। अफसार प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अफसार, अफसार अपना इंट्रोडक्शन दे। मैडम योर इंट्रोडक्शन प्लीज। Afsar Khanam. अफसर, Yes, the batchmate of Harsh. you are new to us, so सर we want सर your अजय introduction. सर बता रहे हैं, अजय सर बता रहे हैं, शी इज a student. अच्छा, इज गुड अच्छा, सर. okay. Sometime they have a little bit reluctance or hesitant because of that, but this is we are glad in the sense that many of the students and preparing aspirants for the civil services are also joining our program. That's very good. बहुत बढ़िया। They Especially should join also. Yeah. They will learn Yeah, so yeah. many things from so many scholars. No? Yeah. Especially Ajay Srivastava gave one of the talks on the ecology and all that aspects. Since that day, many of in UP they are interested to join. Yeah. Ajay ji has a very big network. Yeah, sir. Yeah. He is the head of the department of the botany in somewhere in the college, somewhere in the Ranchi, sir. And from the Ranchi, we have another learned person is from Nagesh Jha. Yesterday Yes. also आज- he couldn't join. Probably we expect अच्छा today. Nagesh Jha has gone out station, so he told that 2 days he will not be able to come, but for some at the last moment he came for just a while. Yeah, So yesterday. let us see today whether he is coming or not. I'll ring him also again from another phone. Yeah. You by the time you We have try, a yeah. very fond memory of botanist of Ranchi, starting with Dr. K.K. Nag, Narendra ji, and others. Since K.K. Nag has been a very, very legendary vice chancellor also, and good Ajay you will be knowing about, and Narendra Bhagat. He was, sir, Kori sir, he was IFS, then he came in IAS. Yeah, I am the direct student of Dr. K.K. Nag. Acha. He's a direct student of Dr. Nag. Dr. Nag, Dr. Mahendra Prasad. Yeah. Dr. Mahendra Prasad, na, Okay, sir. Nagesh Jha has come. Okay. Okay, Nagesh ji, welcome. Nagesh Yesterday we missed you. Nagesh Yeah. Jha, welcome. Especially हाँ, we missed याद है। Khori Maheshwar Prasad sahab in Thank the you, sir. beginning, Thank you. remark from the very introductory for his introductory remark. Today, Amitabh ji request when I feel that eight of the students, 8 of the participants have joined now. Very few minutes will be exceeding 10, and as to the number is 10, then you request. Khori Maheshwar Prasad Sahab for his introductory remark and a welcome to the विनय शुक्ला speaker. जी वेलकम। Yeah, welcome. स्वागत है Namaskar. आपका। नमस्कार। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। Yeah, he is बहुत अच्छा, recording बहुत बहुत धन्यवाद। as well as he is conducts training for the World on behalf of the World Bank, especially for the women groups. So that is his contribution in the development. that's right. बहुत अच्छा। Yeah, he is associated with the training group here, and Yeah. they have a work. They usually conduct the training of sponsored by World Bank. Very good. He's a very sincere man. Even yesterday, in between, I was not there. He recorded, and later, as soon as it process was over, he sent you probably early, probably 10 o'clock or 11 o'clock by yesterday night. Yeah. चंद्रशेखर खान सर आप रांची में भी रह चुके हैं सर क्या? आपका म्यूट है सर, अनम्यूट कर लें। जी, रांची आना जाना बहुत रहा है। अच्छा सर। आशीष कुमार वेलकम। अभी आशीष कुमार जी वेलकम। बाहर निकाल
नमस्कार सर, नमस्कार। ही रहा, पता ना कौन नस काट दी। फिर 2 दिन फिर कल 7 बजे को जवाब दिया, और कहने लगे हमारे स्कॉलर हर्षवर्धन साहब आ गए। हर्षवर्धन जी हमारे यंग स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट, जितना भी उनको कहा जाए कम है, यह कम। हर्ष साहब आपका स्वागत है। हर्ष जी आपका स्वागत है। हाँ, वेलकम। गुड इवनिंग सर। Good evening, welcome. Good evening. Good evening. Welcome. Yeah. वेलकम। अजय जोशी जी साहब ने हम एक लोग नागालैंड वाले से रांची एक में लेडी बहुत की। मिलते हैं, इसके लिए भी संपर्क बना रहता है। अच्छा सर, हाँ। अच्छा। जी। नहीं, आज Ranchi is a good place, no? Like as you have Nainital in UP, probably is that type station, hill station. Bihar. I was there for connection with some training in the administrative training institute there. Then I visited some ashrams also there. Ashram of Yoga Nanji, is very and is a center of meditation there. लेकिन सर अगले 10 साल में रांची एकदम बदल जाएगा सर। अच्छा सर, योगदान। अच्छा। किस वजह से, मतलब वो अभी क्लाइमेट चेंज? नहीं, क्लाइमेट चेंज तो रांची इज इन द इरेटिक वेदर जोन, वो तो एक अलग चीज है। रांची का बेंगलोर का वेदर एक ही है, नंबर 1। नंबर 2, जिस ढंग से यहाँ आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ट्रैफिक। अच्छा। अब वही फ्लाईओवर, डबल फ्लाईओवर, ये सब चीज की सारी स्कीम चालू हो रही है, मतलब बन रही है। तो मतलब मेरा मैसेज ये है कि जब आप देखने में आइएगा ना, तो आपको रांची बदला लगेगा। वो मैं कह रहा हूँ। आई मीन कुछ फ्लाईओवर की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा वेदर रहता है इसका, इतना तो हॉट है। हाँ, यदि पटना से कंपेयर करें तो कमल पीयूष जी बहुत दिन बाद आए हैं। अच्छा सर। कमल पीयूष जी बहुत बड़े विद्वान हैं and he has come for the first time perhaps. कमल पीयूष जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबको प्रणाम। आप अच्छा बोलते, यू आर ए गुड स्पीकर आल्सो। प्लीज गिव अस वन संडे आल्सो। डेफिनेटली सर। We want to listen you. Definitely sir. Newcomers are requested to give their phone number so that they will be knowing about our all program. And it is a matter of great joy that this Ajay Srivastava साहब ने he has arranged one lady for this international migration. उस पे बोलेंगी, नागालैंड की लेडी हैं, she will be speaking on international migration. That is also very good subject. So we will be listening also next Sunday. We are listening Dr. Chaitanya Singh. He will be speaking on patent and trademark. He has done patent and trademark course from USA. Okay. And running his own NGO in Bangalore. He will be speaking from Bangalore. Yeah. डॉक्टर कमल पीयूष जी, आप HTMA में थे और हम आपका सुनने चाहेंगे। हम आपका नंबर चाहेंगे जिससे कि हम आपको कांटेक्ट कर सके, और हमारे इसमें अपना नंबर दे दीजिएगा। हमारे वेब लिंक में आप भी हैं। हाँ, बिल्कुल है सर। आई विल बी देयर। आई विल मेक सम small presentation and give you maybe give me little time. Yeah. तो कमल जी also because you have given one lecture in हम लोग भी जान लें। HTML में एक आपने लेक्चर दिया था। हाँ, मैंने दिया था सर, टूरिज्म के ऊपर एक लेक्चर किया था मैंने। टूरिज्म पर दिया, 2 बार दिया था टूरिज्म पर, हमको याद आ गया। बहुत अच्छा दिया था आपने। आप दिल्ली में रहते हैं? जी, मैं दिल्ली में हूँ। पहले मैं था बिल्कुल याद आ गया। सिन्हा साहब से एक्वेंटेंस थी, तो अब तो हमारा रिकॉर्डिंग भी हो जाता है। अब तो मेरा सारा रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको जब मन में आए तब देख सकता है। हमारे विनय शुक्ला और ये आशीष फ्रॉम लखनऊ, आशीष फ्रॉम लखनऊ, ये लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और बहुत अच्छा वो मतलब उसका रिस्पॉन्स आता है। बहुत लोग देखते हैं।
और जिसको जब जिस सब्जेक्ट पे देखना हो उसको देख सकते हैं. And we are now 11 people at present, so we think that we should start with the permission of our chief guest अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब. और कल हमने उन लोगों को उनको बहुत मिस किया था. वो हम लोग के गार्जियन है, वो रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और वो चंद्रेश्वर खान साहब जोशी तो अच्छा नहीं, जागीर शाह ये लोग नहीं रहते तो अच्छा नहीं लगता है. तो हम लोग मैं मिस किया था, हमको भी फील हुआ सर, लेकिन कल का टॉपिक बहुत बढ़िया था. हाँ, कल का भी बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ. और आप एकदम लास्ट में आए थे, उसकी रिकॉर्डिंग विनय शुक्ला जी ने तुरंत भेज दिया था. रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उससे आपको आभास हो जाएगा. अच्छा हुआ. और कुछ कॉन्फ्लिक्ट, और सुनील कुमार अभी चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरपर्सन रह चुके हैं. सुनील कुमार आगे नाम देते देते आ गए हैं. तो सुनील कुमार जी से बहुत उम्मीद है कि हमारे जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन बिहार में करने के लिए वो प्रयास करेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है. और दिल्ली में विप्लव जी हैं, वो बहुत अच्छा. पल्लव क्षितिज वो भी बहुत अच्छा दिल्ली में हम लोगों के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे सोर्स हैं. अजय श्रीवास्तव जी, हर्ष जी, ये लोग हम लोगों के अच्छे रिसोर्स हैं. We are more than about we are 12 people. प्रसाद साहब चाहे तो अब आप प्रोग्राम को शुरू करवा सकते हैं. प्रसाद साहब जी आवाज आ रही है हमारी. साहब हम लोगों के लिए नए नहीं है. एक लेक्चर उन्होंने दिया और गजब का लेक्चर दिया, उसको बहुत लोगों ने देखा है. बहुत लोगों ने देखा है और इतना सुंदर हुआ है कि आज उनका और ये इस सब्जेक्ट पर सुनने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं. और प्रसाद साहब ने अमेरिका से पूछा हमसे कौन सब्जेक्ट है, तो बहुत खुश हुए. सुशीला पासवान जी आई हैं. ननी गोपाल पांडे फ्रॉम ICR अभी कलकत्ता में हैं. ननी गोपाल पांडे जी भी आ गए. Mr. Amitabh ji, Mr. Sunil ji is also with us. Welcome him also. हाँ, सुनील साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है. सुनील साहब के बारे में हमने भी कहा कि बिहार में जो इम्प्लीमेंटेशन में उनके रहने से बहुत हम लोगों को सुविधा होगी. अच्छा, अमृता अधिकारी ऑल्सो हैड कम. अमृता अधिकारी आप हमारे ग्रुप से चली गई थी. मैं आपको इंक्लूड कर लूंगा बिकॉज यू शुड ऑल्सो बी विथ अस फ्रॉम अमेरिका. अमृता अधिकारी जी आ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है. अमृता अधिकारी जी वेलकम. एंड वी आर नाउ मोर देन 15 पीपल, सो हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ, वेलकम अमृता मैम. प्रसाद साहब जी आपने अमृत बानी से शुरू करवा दीजिए, आशीर्वाद से शुरू करवा दीजिए. बस बहुत आप हमारा बहुत ज्यादा हमारी बात करते चर्चा करते हैं. और मुझे सौभाग्य मिलता है कि इस ग्रुप में मैं शुरू से शामिल हूँ, तो अच्छा लगता है, कोई मिस ना करूं. तो कल का तो प्रोग्राम हमने मिस कर लिया था. आज समय पर आपसे खबर मिल गई. बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसे विषय पर चर्चा होने जा रही है और ऐसे व्यक्ति द्वारा अभय जी बात करेंगे इस विषय पर. वो तो एक वर्सेटाइल जीनियस हैं. इतने सारे विषय पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत है और बहुत ही विस्तार पूर्वक उनका बहुत विस्तृत ज्ञान है उनका. तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये मौका फिर दिया. क्या बेनिफिट है इसके, क्या इसके रिस्क्स हैं, इसमें सब लोग जानना चाहेंगे. खास करके इंडिया को बेनिफिट होगा इससे, किस तरह का बेनिफिट होगा, डेवलपिंग कंट्रीज को के ऊपर क्या असर पड़ेगा. इन सब बातों के, इन सब
इन सब विषय पर हम लोग बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं था, और ये विषय भी बहुत हाल में आया है, बहुत हाल में ही इसकी चर्चा शुरू हुई है। और कुछ कंट्रीज से हम लोगों ने अपने करेंसी में ही व्यापार करना शुरू कर दिया है। वैसे करेंसी में तो एक बहुत सारे उथल पुथल हो रहे हैं, बिटकॉइंस है वगैरह, वो सब पर क्या असर होगा। चाइना अपनी करेंसी को बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इन सब का क्या असर होगा, इन सब को जानने की जिज्ञासा सबकी होगी। और हम चाहेंगे कि अब और ना समय ले हम, आप आशीर्वाद की बात करते हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आशीर्वाद क्या दूं, मुझे तो सीखने का मौका मिल रहा है, और बल्कि मुझे धन्यवाद ही देना है। और अभय जी बिल्कुल निर्भय होकर इस ग्रुप को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। हम लोग सब सर हर्ष जी है सर, हर्ष जी, हर्ष जी माफ करिएगा, कभी कभी देखिए ना, अभी गलती हो रही थी अभय जी का ही। हाँ, एक दो लिंक इस तरह का आया था, इससे लग रहा था कि अभय जी बोलने वाले हैं। खैर, तो हर्ष जी माफ करिएगा, आपको अभिनंदन आपका भी कर रहा हूँ, और आपके ज्ञान की सराहना क्या मैं करूं। आप लोग इतने विद्वान व्यक्ति हैं, तो अब हम सुनना चाहेंगे आपके बारे। आप सब लोग, हम लोग सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो अब अपना व्याख्यान आप शुरू करें। धन्यवाद। हर्ष जी वेलकम। थैंक यू सर, आप शुरू करें। वी आर मोर देन 20 पीपल नाउ एट प्रेजेंट, और अभी और लोग भी आने की उम्मीद है। और ये सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो नए लोग आए हैं वो हमारे ग्रुप में हमको अपना नंबर देते हैं, जिससे कि हम उनको हर शनिवार रविवार के प्रोग्राम के बारे में बता सकें, उनके पास मैसेज चला जाए। और इससे सारे यंग लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि ये सारे हमारे जितने लोग आते हैं, नवल पासवान जी आए हैं, उनका स्वागत है। जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं वो चुन चुन के हमारे ये 240 ग्रुप में शामिल हैं, और बहुत अच्छा बोलते हैं। सभी आईएएस हैं, सभी आईपीएस हैं, और मतलब आईएएस आईपीएस गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर, और सब इतने बड़े बड़े विद्वान अच्छे अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हैं कि उनके पास ज्ञान का खजाना है, और वो ज्ञान का खजाना लुटा रहे हैं। और यंग लोग जिसको हमारे अजय श्रीवास्तव साहब जोड़ रहे हैं, और यदि सुनेंगे तो उनको सभी, जैसा कि जोशी जी ने बताया, यूपीएससी बीपीएससी और ये सारे परीक्षा में पास करने में बहुत सुविधा होगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर्षवर्धन जी केवल 23 ईयर्स ओल्ड हैं, और इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अभी आप सुन के आपको पता लगेगा कि ऐसा नॉलेज बस हो, जैसे विवेकानंद जी को नॉलेज था बचपन में ही, उस तरह का नॉलेज इनको इकोनॉमिक्स में है। तो ये गॉड गिफ्टेड आदमी है, इनको सुनने का हम लोगों को मौका मिलेगा, और इनकी रिकॉर्डिंग भी रखेंगे। हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में भी इनकी बात हम लोग सुनते रहें। और ये एकदम एक्सपर्ट है, हर चीज का डाटा इनके पास जो है वो शायद साधारण लोगों के पास नहीं हो सकता। और इतनी अच्छी तरह से समझाने का तरीका है कि मतलब एक साधारण आदमी समझ जाए। बाकी हमारे ग्रुप में तो सब स्कॉलर ही हैं। तो हर्ष जी वेलकम, शुरू कीजिए। हर्ष जी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स भाषा रखिएगा। कुछ लोग हिंदी का प्रेफर करते हैं, एंड सम पीपल वांट इंग्लिश आल्सो। तो राधा कृष्णन जी अभी तो आए नहीं है। राधा कृष्णन जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था, he should come. He told that he selective subject to interest का था उनका भी, but he may come also. So please, हर्ष जी A very good evening, sir. start. A very good evening, sir. और सभी बड़े जनों को मेरी तरफ से प्रणाम। और since my last topic was specifically about international relations and the economy, इस बार
अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द पॉलिटी, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवोल्यूशन, इफ हम परमिटेड टू। हाँ ये परमिशन है जी सर। आप जो बोलेंगे जी, आपके कंफर्ट जोन से ही शुरू करें। वेलकम वेलकम। या श्योर। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर सुन रहे, बात हो रही है या डी-डॉलराइजेशन पर? अभी डी-डॉलराइजेशन पर भी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी हो रही है। ठीक है, दोनों पर हो रही है। Okay, so I would like to start with the evolution and basic structure of the constitution. Yeah. I would request a few viewers to turn off their mics. It's creating echo. अच्छा, जिन लोगों का माइक, जैसे नवल जी आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। हाँ, ओके, नवल जी अपना माइक ऑफ कर दें, हम भी अपना माइक ऑफ करते हैं। Okay, so let's get started. Tracing the roots, the evolution of India's basic structure doctrine. Now, अब हम समझते हैं कि इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात क्या हो गई। Actually, the basic structure is not a part of the constitution. As you could see, it is a doctrine. There are many kind of doctrines. आप किसी भी चीज को मान लेते हैं, सोसाइटी में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप एक लेमन लैंग्वेज में उसको डॉक्ट्राइन कह सकते हैं। Now, what is the question here? What is the core demand here? The core demand is that who is stronger? होता है ना कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में दो पार्टीज है, पार्टी ए है और पार्टी बी है। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो देयर विल बी a varied distribution of power or equal distribution of power among these two parties. यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एक बेसिक स्ट्रक्चर। सो वेट अ सेकंड प्लीज। Okay, I'm resharing. Yeah. Okay. तो सबसे बड़ा सवाल बेसिक, बहुत अच्छा, गुड। हेलो, am I audible? Yeah, visible and audible both. Yeah. आपका म्यूट है सर, फिर भी यस सर ऑडिबल। ओके सर, थैंक यू। Audible तो and सबसे PPT बड़ा is also सवाल visible. ओके, थैंक यू सर। The very important question that lies here is which one is stronger? Article 13 is stronger or Article 368 is stronger? अब हम समझते हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या हैं in order to get into the core demand of the topic. Now, Article 13 says any violation, abridgment or contravention in the Constitution will be declared as ultra vires. थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। Now, if I try to deconstruct it, Article 13 says कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा संविधान संशोधन या कोई भी ऐसा कदम जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को टच करता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि वो वैलिड नहीं होगा, अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देयर आर सम टेक्निकल टर्म्स है। यस, इट्स वर्किंग।
The first technical term is Part 3 of the Constitution and it is related to Article 13. हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो होता है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक. What does Article 12 says? ये समझना बहुत जरूरी है. Article 12 gives the definition of state. What is a state? राज्य क्या है? हमारे संविधान में राज्य का मतलब ये नहीं है कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया. इससे मतलब है कि what is the authority? What is the regulating authority who is controlling the sovereign nation? Okay, that is Article 12. And Article 12 is a definition, while Article 13 is a negative connotation. Now I'll repeat again. Article 13 says any order, any amendment which violates, abridges, or contravenes the basic structure doctrine of the Constitution shall be declared null and void. यहाँ एक और चीज है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है. इट इज टर्म्ड एज जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सिंस वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स तो आई विल कीप इट शॉर्ट. जुडिशियल रिव्यू ये होती है कि मान ले आपका कोई भी अधिकार उल्लंघन हुआ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो. यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यू कैन से माय लॉर्ड they have breached my right and the Supreme Court will act and this will activate the Article 32 that is the judicial review. देखिए चीजें इस प्रकार से बढ़ती हैं कि कोई भी सिटीजन है, फॉर एग्जाम्पल if there is a citizen A. Hold on a second, please. There are some technical glitches. Yeah. There is a citizen A. He goes to the court and says, my lord, the government is not giving me my rights. सिंपल लैंग्वेज में सरकार ने कोई भी ऐसा कानून पारित किया जो मेरे हक में नहीं है. What it will do, it will activate the Article 32 of the Constitution initially and it will go to the Supreme Court. What will Supreme Court do? If Supreme Court finds that it is a violative under Article 13 of the Constitution, then it will declare it is as null and void or ultra vires. Okay. ये था आपका आर्टिकल 13. नाउ व्हाट डज आर्टिकल 368 से? लड़ाई तो इन्हीं दोनों के बीच में कि माय लॉर्ड विच वन इज स्ट्रॉन्गर, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 says that parliament shall have the power to amend any part of the constitution. प्लीज यहां पर गौर करिएगा कि आई एम सेइंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब एनी का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द लॉ, देयर इज नो इमोशंस इन लॉ, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट. सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज को इंटरप्रेट करती है और उसके हिसाब से जजमेंट देती है. अब अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा फॉर द व्यूअर्स, आर्टिकल 13 तो कह रहा है कि माय लॉर्ड आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते, एंड आर्टिकल 368 इज सेइंग दैट यू कैन टच और अमेंड, इन अदर वर्ड्स, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ हाउ कम इज दिस पॉसिबल? ये बात पॉसिबल कैसे हो गई? सी, अब चलते हैं 1950s के टाइम में. लेट अस मूव बैक टू 1950s. अब कहानी यहां से है. इसके पहले क्या हुआ? लेट अस फॉरगेट इट फॉर अ सेकंड. हम उस चीज को भूल जाते हैं और 1950 में जाते हैं. हुआ क्या था? हमारा प्यारा भारत
जो कि एक नया कंट्री था, एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था फ्रॉम द क्राउन रूल, वी हैड वेरियस चैलेंजेस। हुआ क्या था कि we were suffering from poverty, illness, and various issues that a new country faces even nowadays. जो भी नई कंट्रीज का फॉर्मेशन हो रहा है, they are suffering from the same. Uh, I would request honorable members to turn off their mics. Okay, thank you so much. ठीक है, 1950 का ये दौर था, भारत हुआ आजाद। भारत की आजादी के बाद क्या हुआ? We had our beloved Chacha Nehru as our prime minister. ये ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, so I beg your pardon. नेहरू साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू सेड कि हमें वेलफेयर स्टेट के लिए काम करना है, एज मेंशन इन द डीपीएसपी एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू साहब ने कहा कि अगर हमें हमारे देश के गरीबों का डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इन लोगों को इक्विटेबल लैंड देना होगा। फॉर द पुअर्स वी शुड गिव देम इक्विटेबल लैंड। अब सवाल ये था, एवरीबडी इन द पार्लियामेंट आस्क्ड नेहरू कि हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? देन नेहरू साहब से कि जो भी एक्स्ट्रा लैंड है, जो भी लैंड होल्डर्स हैं, जो भी जमींदार हैं, दे आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर लैंड टू द गवर्नमेंट। ये बात चल रही थी। अब ये बात कानों कान खबर पहुंची जमींदारों के पास। नाउ जमींदार्स एंड हु वर द रिस्पेक्टेड लैंड ओनर्स एट दैट टाइम, दे वर लाइक कि नेहरू साहब, वी रिस्पेक्ट यू वेरी मच, यू आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, पर हम आपको अपनी जमीन नहीं दे रहे। वी आर नॉट गिविंग यू आवर लैंड एट एनी कॉस्ट। नेहरू साहब सेड, व्हाई वुड यू डू दिस टू मी? दिस इज योर कंट्री, दिस इज योर पीपल, देन व्हाई वोंट यू कंट्रीब्यूट? देन दे सेड कि नेहरू साहब, द थिंग इज वी हैव समथिंग in our constitution which is termed as Article 31, which is the right to property. Now Article 31 lies in part 3 of the constitution, which are fundamental rights. उस समय क्या था कि fundamental rights were supposed to be the sacrosanct part of the constitution. सैक्रोसैंक्ट से अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आप अपने ईश्वर को मानते हैं, आपके ईश्वर सैक्रोसैंक्ट है। ही कैन नॉट बी टच्ड, ही कैन नॉट बी करप्टेड, ही कैन नॉट बी वायलेटेड, बी इट इन एनी माइथोलॉजी, इन हिंदुइज्म, इन इस्लाम, इन क्रिश्चियनिटी, इन जुडाइज्म, गॉड इज समथिंग विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। इट इज ओमनीपोटेंट येट ओमनी प्रेजेंट। ओके, ये सारी चीजें चल रही थी। नेहरू साहब घबरा गए। नेहरू वॉज लाइक कि हाउ एम आई गोइंग टू डेवलप माई नेशन, हाउ एम आई गोइंग टू हेल्प माई पीपल, जब उनके पास जमीन ही नहीं होगी तो वो खेती करेंगे कैसे? एंड एट दैट टाइम इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गिव गवर्नमेंट जॉब्स टू एवरीवन। रीजन क्या था? रीजन था कि हाई लिटरेसी रेट, हमारे पास उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी भी नहीं। आफ्टर द 5-year plans it was observed, after the Mahalanobis plan, we got heavy industries and all the stuff. इस वक्त क्या हुआ? नेहरू साहब was in deep dilemma. Now he went to his best friend. Whenever something happens, we call somebody, we need somebody. Nehru Saab went to the one of the greatest of all time, that is Dr. B.R. Ambedkar Saab. Chacha Nehru said, Ambedkar Saab, I have a problem. He said, what? मेरा देश है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, and I am not able to help my people. Then Ambedkar Saab said, Nehru, why are you taking so much pressure?
आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको अमेंड कर दो. He said, can I do this? Ambedkar said, yes, you can. Then, in the year 1951, we observed the first Constitutional Amendment Act of 1951. अब संविधान संशोधन तो आज 2023 में 100 से भी ऊपर हो चुके हैं. खास बात क्या थी? पहला संविधान संशोधन था, इसमें ऐड किया गया आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और 9 शेड्यूल को हम ब्लैंकेट शेड्यूल भी कहते हैं. नाउ आई वोंट गो इन डिटेल ऑफ व्हाट इज 31A and B and 9 शेड्यूल, बट आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट. फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ पैसे हैं. यू डोंट वांट समबडी टू सी इट. You have a blanket in your house. आपने उसको उसके ऊपर बिछा दिया. Now it is not visible. Same is the case with 9 schedule. सरकारें क्या करती थी कि कोई भी कानून जो उनको पसंद आता था, वो चाहती थी कि इसके साथ छेड़छाड़ ना हो. They used to bury it under the blanket of the 9 schedule. ये पार्ट हो गया. Now there was a zamindar. His name was Shankari Prasad. And that was the first ever case of India, of the independent India regarding the constitutional amendment, and it was Shankari Prasad versus Union of India case of the year 1951. Shankari Prasad went to the Supreme Court and said, "My lord, Nehru Saab is a very respected person, but he is taking away our fundamental rights." Now the question arose, which one is stronger, Article 30 or Article 368? ये था फाइट का पहला राउंड. सबसे बड़ी बहस का पहला राउंड कि आखिर ये पलड़ा किस पर जाए. Supreme Court in the Shankari Prasad versus Union of India case observed that Article 368 have greater power with respect to Article 30. In other words, Article 368 won the first round of competition. Now, Supreme Court observed that we are the final interpreters of the Constitution. Article 13 cannot act as a hamper to the development of India. ये था हमारा पहला केस. Similarly, in the year 1954, there was another case which was the Sajjan Singh case versus State of Union of India case of the year 1954. सेकेंड राउंड था. सबको उम्मीद थी, सबके अंदर जिज्ञासा था कि होना क्या है. The same thing happened again. Supreme Court again observed in the second round that Article 368 is supreme with respect to Article 30. What it says that Parliament is the elected body. It has the right to amend any part of the Constitution of India. In other words, the Parliament is the supreme authority. See, हम 2 राउंड तक पहुंच गए. ठीक है, हमें ये पता चल चुका है कि अब तक आर्टिकल 368 is powerful with respect to Article 30. ये बात है. What does Article 368 says? It says कि हमारा जो पार्लियामेंट है, it has the power to omit, change or include anything in the Constitution of India. किसी भी चीज को भारत के संविधान में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है. 1954 का समय बीत गया और हम 1960 के दशक में आ चुके थे. Later 19 after the war, after the 65 war, now there were many challenges. सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि there was a political change in the nation.
And second, the observations of the Supreme Court were changing also. सी एथिक्स का एक टॉपिक होता है, उसमें एक सब टॉपिक है एथिकल रिलेटिविज्म। एथिकल रिलेटिविज्म में मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जानते होंगे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स। सपोज देयर इज अ पर्सन ए, ही बिलीव्स इन हिंदू गॉड विष्णु, एंड देयर इज अ पर्सन बी हु बिलीव्स इन हिंदू गॉड शिव। इनके आइडियाज कुछ और होंगे, सपोज एक्स, इनके आइडियाज होंगे वाई। There will always be conflict in these two ideas, and this is called as ethical relativism. Ethical relativism says that whenever two schools of thought will exist in a society at a particular time, there will be always friction in their thought processes. बात यही थी, समाज में बदलाव हो रहा था, एंड सुप्रीम कोर्ट इज सब्जेक्ट टू चेंज। आज जो गलत है वो कल सही होगा, और कल जो सही है वो आज गलत हो सकता है। ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी। ओके, दीज टू चेंजेस वर प्रोमिनेंट। आई होप आई एम क्लियर। अभी तक बात ये थी कि आर्टिकल 368 इज सुपीरियर। हाँ भैया, आप चेंज कर सकते हो, यू आर द सुप्रीम बॉडी, आप हमारे संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकते हो। Now, there was a legendary figure in India. His name was Justice Hidayatullah. Justice Hidayatullah Saab later acted as the acting president of India. That is some other topic. He said in a statement, yes, I believe that Article 368 is superior than Article 13. जस्टिस हिदायतुल्लाह का यह कहना था, मैं इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं कि जो अनुच्छेद 368 है वो अनुच्छेद 13 से अधिक शक्तिशाली या ताकतवर, आप जो भी कहें, है। लेकिन he said in the later part of his statement that it was the vision of the founding fathers that the fundamental rights of the citizens of sovereign India are precious. In other words, Justice Hidayatullah said कि जो मौलिक अधिकार है हमारे लोगों के, ये हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने हमारे देश की गठन में इतने सैक्रिफाइसेस किए, उनका ये विजन था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट implied the fact that Supreme Court is not very happy. हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो इन चीजों से खुश नहीं। एंड स्पेशली हिदायतुल्लाह, अ फिगर ऑफ सच valor, he is saying that it is something contravene. बस उनकी बात आनी थी, और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी बात को बस एक चिंगारी चाहिए होती है और लॉ वो खुद पकड़ लेती है। Same thing happened again in the 1967 Golaknath case versus State of Punjab. This case changed everything. आप कह सकते हैं कि भारत में इसके पहले ऐसा गेम चेंजर केस नहीं है। 11 जजेस की बेंच बैठी। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट बेंच इज। फॉर दोज हु डोंट नो, एक्चुअली जब भी किसी केस की सुनवाई होती है तो एक बेंच का फॉर्मेशन होता है। बेंच इज अ काइंड ऑफ अ बॉडी, उस पे नंबर ऑफ जजेस बैठते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द केस, एंड दे आर ऑलवेज इन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्यों होते हैं? ताकि एक कंसेंसस रीच हो सके। ये था बेसिक, ठीक है। 1967 में गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हुआ। आई एम सॉरी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस हुआ। 11 judges की बेंच बैठी, and they for the first time overruled the previous two cases, that is the Shankari Prasad case and the Sajjan Singh case of 1951 and 54 respectively. Supreme Court said that 368 cannot
touch the fundamental rights of the people. 368 is a violated actor in the very fabric of the country. इस चीज को समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझे कि भारत क्या है। ठीक, भारत is an idea. Don't you guys think it is an idea? आप सिटीजनशिप, आप नेशनल बाउंड्री, आप पहले बाद में देखना। Why Mahatma Gandhi fought? Why Nehru fought? Why B.R. Ambedkar was there? And many more figures, many more respective figures from different sections or different stratas of the society, इन्होंने अपनी कुर्बानियां क्यों दी, अपना वक्त क्यों दिया इस देश को? For something known as basic rights, नमक सत्याग्रह सब जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट सबको पता है, 1942, सारी चीजें हमको पता है। पर ये है क्या, है क्यों? ये पेनिनसुलर स्ट्रक्चर, ये साउथ एशियन नेशन भारत आखिर है क्या? It is an idea. Suppose there is Pakistan. Pakistan is based on the idea that there should be an Islamic nation. उनकी सोच है, we must respect it. हमारा देश है भारत, हम कहते हैं हमारा आइडिया क्या हो। जैसे चाइना इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर शुड बी नो रिलीजन, ओके, कम्युनिज्म इज द मेन रिलीजन। देन वी ऑब्जर्व कि व्हाट इज इंडिया? The Supreme Court said India is an idea. Similarly, the Constitution of India is based upon an idea. ये आइडिया क्या है? ये आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा भाग होना चाहिए जो उसकी आत्मा हो। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है तो कहा जाता है इमोशंस होता है, बट साइंस says that our neurons work. I won't go in that topic. It said efforts are the basic structural part of the constitution. यहां तक की कहानी हो गई क्लियर। अब सिंपल टर्म्स में ये होता है, सपोज यहां पर दो लोगों की बातें हो रही हैं, सपोज दिस इज पर्सन ए एंड पर्सन बी एंड देयर इज अ फ्रेंड पर्सन सी। ये बंदा हमेशा दूर से चीजों को ऑब्जर्व करता है, पता नहीं क्यों करता है, पर मेरे लाइफ में भी कुछ लोग हैं, they always observe things from a very distant place, and I call these people Madam Indira Gandhi, MIG. ये लोग कभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे and they will just bang their opinions out of nowhere. Similarly, Indira Gandhi madam was observing everything in our nation. पार्लियामेंट की पावर को पहली बार रिस्ट्रिक्ट किया गया। आप किस चीज को समझ रहे हैं कि आर्टिकल 368 said what? It is unlimited. Now the Supreme Court in Golaknath judgment in the year 1967 is saying you cannot touch it, you cannot amend whatever you want. Madam Indira Gandhi was a very prominent figure, very powerful personality. उनको ये बात पसंद नहीं है। As a retaliation of the Supreme Court judgment, the Parliament of India passed the draconian 24th Constitutional Amendment Act of 1971. क्या था ये 24वां संविधान संशोधन 1971? सिंपल वर्ड्स में समझिए, इन्होंने कहा बांसुरी बजा रहे हो? लोगों ने कहा हाँ भैया बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हो? बांस है भैया इसीलिए। बांस ही हटा देंगे, बजाते रहो बांसुरी। What Madam Indira Gandhi did, she amended the Article 13 itself. Now understand the gravity of the situation. सारा झगड़ा, सारा कलेश, everything was regarding Article 13 and Article 368. आपने जड़ को ही खत्म कर दिया। The 24th Constitutional Amendment Act said that in Article 30, with respect to Article 13, nothing in this article shall affect the amending power of Article 368.
I'm repeating it again, quote unquote. Nothing in Article 13 shall prevent the Parliament from amending any part of the Constitution. तू चला गया इंडिया में, क्यों? ये बातें आम लोगों को क्यों इफेक्ट कर रही? आप एक बात समझिए, आर्टिकल 30 इज योर फंडामेंटल राइट, और हम किस देश में रह रहे हैं? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी, राइट? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के भी अलग टाइप्स होते हैं, आई वोंट गो इनटू दैट. डेमोक्रेसी सेज, लेमैन लैंग्वेज में बताता हूं जिनको ना पता हो, आप डेमोक्रेसी में यू हैव अ पावर टू कास्ट अ वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. आप सभी वोट देने जाते हैं, आप सभी एक सरकार को चुनते हैं. क्यों चुनते हैं? ताकि वो सरकार कल को आपके लिए काम कर सके. So who should be the most powerful entity? That is the people of the sovereign country. People are not sovereign, but the country is sovereign. That is some other concept. I'll discuss it anytime soon. Supreme Court said that भैया क्योंकि आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो, it is based on the principle of checks and balances. चेक्स एंड बैलेंसेस. हम हर चीज को चेक करेंगे, अगर वो सही है तो पास करेंगे, और अगर उसमें गलत है कुछ भी तो उसको कैंसिल कर देंगे, और कुछ त्रुटियां हैं जिनको ठीक किया जा सकता है तो हम उसको ठीक करके आगे दोबारा उसको एज अ न्यू बॉडी प्रेजेंट करेंगे. दिस वॉज द केस. देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी आर्टिकल को पढ़ती है तो they might have observed something. They are the final interpreters of the Constitution of India. They are the ultimate interpreters of the Constitution of India. In other words, they are the ones who are going to decide what does this law says. It is upon their discretion. Now, Article 13 might have got something which came into the eyes of the Supreme Court. आर्टिकल 13 में कुछ तो ऐसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया. दैट्स व्हाई इट सेड दैट आर्टिकल 13 इज द बेसिक पार्ट. अनलिमिटेड क्यों नहीं होती है कुछ भी चीज? एक डेमोक्रेसी में आपको हमेशा आंसरेबल होना होता है. जैसे हम और आप किसी ना किसी के लिए आंसरेबल है. आई एम आंसरेबल टू माई पेरेंट्स, टू माई एल्डर सिस्टर्स. If you are married, you are answerable to your parents or your wife or anybody. वैसे ही डेमोक्रेसी में जो सरकार हमने चुन के लाई, that is answerable, that government is answerable to parliament, and that parliament is answerable to people of India, the Republic of India. अगर गवर्नमेंट पार्लियामेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, then in the next elections the people will say कि we are not giving you vote. For example, लोकसभा में 545 सीट, 500 सीटें किसी भी पार्टी को मिल गई. You are you understanding the gravity of it? 368 है आपके पास, आप किसी भी चीज में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं. प्लस यू हैव मेजॉरिटी. आपको कोई रोकने वाला होगा? नहीं होगा. That's why the Supreme Court in the Keshwananda Bharti case of the year 1973, which was the landmark judgment, that is on the 24th of April 1973. 3 सवाल थे, 13 जजों की बेंच थी. 3 सवाल थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास. पहला सवाल था कि My Lord, is 24th Constitutional Amendment Act valid? क्या 24वां संविधान संशोधन वैलिड है? सेकंड, गोलकनाथ जजमेंट overruled the Shankari Prasad and Sajjan Singh case. Is it right or wrong? And the third question, वही क्वेश्चन जो हर बार से हमें तंग कर रहा था कि is Article 13 greater or Article 368 is
Great. Then Supreme Court said, don't worry, my dear citizens. We are establishing a doctrine. What doctrine? We are telling you about the basic structure of the Indian Constitution. बेसिक स्ट्रक्चर says कि हमारे देश में कुछ कानून ऐसे होंगे जो मौलिक अधिकार तो होंगे, लेकिन कुछ कानून ऐसे होंगे जिनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं. Okay, like what happened in the 42nd Constitutional Amendment Act, there was a question whether the preamble is a part of Constitution or not. Or what is preamble? Is it an identity card of the Constitution or is it the soul of the Constitution? That is some other debate. It would take me an hour to explain. So let's get to the topic quickly. Supreme Court said कि fundamental rights are not sacrosanct. Why fundamental rights are not sacrosanct? ऐसा इसीलिए हुआ कि had Supreme Court have declared fundamental rights as sacrosanct, होता क्या कि जो शंकरी प्रसाद केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 है तो जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है नेहरू जी कर सकते हैं, उसको रिवर्स करना पड़ता, वो नल एंड वॉइड हो जाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता. दैट्स व्हाई विथ डिफरेंशिएबल इंटेलिजेंशिया, क्या होती है डिफरेंशिएबल इंटेलिजेंशिया? कि हम डिफरेंशिएट तो करेंगे, वी विल डिस्क्रिमिनेट, बट वी विल डिफरेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, एक 10 साल का बच्चा है, उसने कहीं से किसी के घर से 5,000 रुपए चुरा लिए. ठीक है, एक बड़ा व्यक्ति है, उसने 10,000 रुपए चुरा लिए. इन दोनों को सेम सजा नहीं मिलनी है. इस बच्चे को सुधरने का मौका दिया जाएगा, सुधरने का मौका इस बंदे को भी दिया जाएगा, पर बात यह है कि ही विल फेस सम सॉर्ट ऑफ रिगरस imprisonment or some sort of strict laws, while this child will face the chance to pay for his actions. ये थी डिफरेंशिएबल इंटेलिजेंशिया. ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली अमेरिकन कॉन्सेप्ट. ये आगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बात होती है इसकी. आई विल डिस्कस इन सम अदर डे जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो. ना 1973 के जजमेंट में हमें ये बात पता चली कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट. उसके रिजल्ट में सरकार ने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन आया. एक सेकेंड, the 44th Constitutional Amendment Act came in the year of 1978. 1978 में क्या हुआ, the Article 31 and Article 19 subclause 1 subclause F, which says that right to property is a fundamental right, was moved away to Article 300 Part A. In the conclusion, Supreme Court said कि हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा. कोई भी सरकार, वो वाजपेयी जी का बहुत फेमस डायलॉग था पार्लियामेंट में, सरकार आएंगी जाएंगी पर हमारा देश रहना चाहिए, ये भारत रहना चाहिए. नॉट इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑब्वियसली, पर हमारा देश टिका रहेगा अंत तक. कैसे टिका रहेगा? कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिनको आप टच नहीं कर सकते. क्यों नहीं टच कर सकते? क्योंकि ये हमारे संविधान की आत्मा है, इसी पे हमारा देश निर्भर करता है. In the last part, the Supreme Court said that the basic structure is subject to evolution. जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर समय के साथ इवॉल्व करेगा, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं आर्टिकल 32, जिसके कुछ एग्जांपल हैं आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
Article 226, or even or even the very power of the parliament to amend the constitution, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. एक्चुअली क्या हुआ था, इन द ईयर 1973 मैडम इंदिरा गांधी थॉट कि अब हम इलेक्शंस हार जाएंगे, हमारी जा नहीं रही आगे. व्हाट शी डिड, she introduced a law regarding the newspapers. मैडम इंदिरा गांधी did कि भैया हमारे देश की स्थिति खराब है, हमने अभी जस्ट हम जंग लड़के आए हैं, हमारे पास न्यूज़पेपर पहले एक्चुअली में क्या होता था, फॉर द व्यूअर्स हु डोंट नो, जो न्यूज़पेपर्स का प्रिंटिंग मटेरियल होता था और जो कागज होती थी वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था. As a result, Madam Indira Gandhi said कि we don't have enough money. That's why अखबार नहीं छपेंगे. Then the Supreme Court came into intervention and said there was a legislation which was implied. It is called as doctrine of colorable legislation. Doctrine of colorable legislation says that you cannot read anything which is not written. अब कहोगे भैया जो चीज लिखी नहीं है उसको कैसे पढ़ें? In other words, the Supreme Court meant you cannot do something implicitly which is prohibited explicitly. जो काम आपको करने से डायरेक्टली मना किया गया है वो आप इनडायरेक्टली नहीं कर सकते. ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. देयर आर 11 to 13 डॉक्ट्रिन्स. इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी आई विल डिस्कस इट सम अदर टाइम. So this was all about the basic structure of the Constitution of India. My next topic will be the de-dollarization. Any questions regarding the basic structure of India? I'm ready to entertain it. Any question, anyone? No, Harsh ji, आपका बहुत अच्छा भाषण रहा. I rather not only appreciate, I congratulate you for your very sequential and logical explanation for each and every amendment. और ये सारा चीज आपका रिकॉर्ड, ये वीडियो आई मीन ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो भी हो रही है. अब सर हम लोग de-dollarization पर जाएं सर. थैंक यू सर. प्लीज गो अहेड सर. Thank you so much, sir. That was enough about polity, I guess. Now I'm moving to the de-dollarization thing, which is my forte, the economics. Okay. एक सवाल, जस्ट फॉर 1 सेकेंड. Sure, sir. ये बड़ा अच्छा लगा सराहना जो कि नागेश जी ने, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ. अभी जो लेटेस्ट पोजीशन क्या है, ये तो some kind of a doldrum which has gone on from 1950. पार्लियामेंट सुप्रीम है या नहीं है. अभी यूनाइटेड स्टेट्स में अभी हाल में आपने देखा होगा कि रेशियल बेसिस पर जो एडमिशन होते थे एलीट इंस्टीट्यूशंस में, हाँ, तो उसमें एक जजमेंट हुआ है. ऐसा पूरा हमको पूरी जानकारी नहीं है, बट इतना है कि देयर वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल provision that there shall be no racial discrimination, but it was being violated for a long time, and abruptly it has been restored. The original interpretation, or not the original provision of prohibiting racial discrimination has been restored. तो अगर हम ये इस रास्ते से अपने यहाँ की जो चेंजेस हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इसमें अगर हम तुलनात्मक तो नहीं, लेकिन अगर हम समझें कि we are possibly following the same trend, will it be correct to say that? Sir, actually the topic which you are talking about, that was the case of
students for fair admission versus Yes. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. इस केस में हुआ क्या कि द क्वेश्चन ऑफ द 14th अमेंडमेंट, लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 है, दैट इज द राइट टू लाइफ. इट इज लाइक अ कॉन्ग्रुएंट थिंग, नॉट इक्वल बट अ कॉन्ग्रुएंट थिंग टू आर्टिकल 14. 14th अमेंडमेंट ये कहता है कि देयर शैल बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज कलर ब्लाइंड. इनका मतलब ये था कि जो हाँ, बिल्कुल. I'm sorry, I'm really जी. हाँ, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है एक्चुअली वो कलर ब्लाइंड होती है. कहने का मतलब हमारा ये है कि हम जब भी कोई राइट देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. अगर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है तो कलर बेसिस आया कहां से? दैट वाज द क्वेश्चन. और ये सवाल इसीलिए उठा कि द सुप्रीम कोर्ट जज which was there at that time, he has been accused of like having some kind of a thing for some sort of political party. दिक्कत ये है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के इंटरप्रिटेशन में कि the judges which are selected they actually are vocally supportive to a political party. ये आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते. फॉर जी. एग्जाम्पल अगर आप रिजर्वेशन की केसेस की बात करें सर, तो reservation, according to the observations of the Supreme Court, which I'm telling you, Supreme Court has clearly mentioned that reservation is a tool to achieve the equal protection, not a violative of the equal protection. तो हम चीजों को सब्जेक्टिव वे में लेते हैं and they took it in a very narrow term. The Supreme, it was the statement of Supreme Court, I'm saying it in quote and quote, that the racial discrimination is a bias, it is a thing of the past, and we must not be dependent upon the fact that we are giving our judgments according to some urban legends. सर ये रियलिटी है कि यूएस में अभी भी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो एंड नहीं हुआ है. आपके पास जॉर्ज फ्लॉयड का केस है. अगर आप यूएस के केसेस को छोड़ भी दें तो जो वो बच्चा था 17 साल का नाहेल अल्बेनियन ओरिजिन था जिसमें फ्रांस में उसको शूट आउट कर दिया गया, उसके सीने पे गोली मारी गई. नाउ कई आर्ग्यूमेंट्स है, आई वोंट गो इन द आर्ग्यूमेंट्स, आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर वेरियस पर्सपेक्टिव. The Supreme Court of India has a different perspective and we are dependent upon our doctrines. We are not supposed to be influenced by US judgments or US or any of the UN judgments because we are sovereign. And that is the reason our people are not sovereign, but our country as a whole is sovereign. We can take the inspiration, but the case of racial discrimination is something which is out of the box for India. Thank you, Sam. बहुत अच्छा. Thank you. Thank you. Please give me 2 minutes. I'm connecting my Bluetooth again due to interrupting call. It has been disconnected. I'm trying to connect it. Please bear with me. Please give me 2 minutes. I'm connecting. Please. Yes, Yeah, okay, it's okay. Okay. Okay, am I audible? Yes, you are audible. Okay, thank you. So I'm sharing the screen again. Yes. Let's get to the point. अब हम आते हैं de-dollarization पे. See,
in the basic structure of the constitution, we argued about an identity. हमने बात करी एक आइडेंटिटी की भारत देश क्या है. भारत देश एक आइडिया है. It's a basic idea. And what is a country? It should be stable. Why the pen is not working? Let me change the color. Maybe too dark. Uh, yes. Okay. Back to business. See, किसी भी देश की प्रथम इकाई होती है उसके इकोनॉमी की, वो है आपकी फिएट करेंसी. फिएट करेंसी वो करेंसी है कि जिसको आप लीगल टेंडर मानते हैं, which is acceptable as a unit of storage. उस करेंसी में एक ट्रांजिएंट वैल्यू हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, चेक्स के केसेस में, विच इज नॉट अ लीगल टेंडर. और एक स्टोरेज ऑफ वैल्यू होगी इस करेंसी में. सपोज आपके पास 100 रुपए का एक नोट है जिसके नीचे आप जो भी, फॉर द व्यूअर्स डोंट नो, ऐसे तो सबको मालूम होगी ये बात, नीचे यहाँ लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं या देता हूं. अभी तक क्या हुआ, इस वचन का क्या मतलब हुआ? इस वचन का ये मतलब हुआ कि द गवर्नमेंट, द करेंसी इज बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री. जो भी करेंसी है, बीट जापान और बीट येन, युआन, रेनमिंबी एंड यूएस डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग, इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक. जो भी कंट्री जितनी भी स्टेबल होगी, please remember my words for further clarification, the country which is going to be more stable is going to have more respect. Obviously आप ज्यादा स्टेबल होंगे, आपकी घर की बातें बाहर नहीं जाएंगी, तो आपके घर की स्टेबिलिटी बढ़ी रहेगी, आपकी समाज में इज्जत बढ़ी रहेगी. सेम गोज फॉर आवर करेंसी. सिमिलरली हुआ क्या, अभी नीड हुई, हम धीरे धीरे उस चीज पर बढ़ेंगे, एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ेंगे. एंड आई एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड इन द एंड आई एंटरटेन द क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज द डी-डॉलराइजेशन? ये है क्या डी-डॉलराइजेशन? ये चीज क्या? डी-डॉलराइजेशन इज बेसिकली द रिप्लेसमेंट ऑफ द यूएस डॉलर बाय अदर करेंसी. सिंपल शब्दों में, फॉर द लेमैन लैंग्वेज, अगर हम भारत देश में रह रहे हैं और हम कहीं भी विदेशों में जाते, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि अगर हमारे पास डॉलर है तो हम आराम से ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं. ये सच्चाई है. अब सवाल ये उठता है कि व्हाई सच अ डोमिनेंस ऑफ यूएस करेंसी? सी, it is first of all, for the first point, it is used to settle the trade balance. Second, it is preferred by the various central banks of other countries like India. की आरबीआई खुद हमारे फॉरेक्स रिजर्व में कितने परसेंटेज हमारे पास, वो आगे I'll टेक द टॉपिक इनटू हैंड, कितने परसेंट हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर्स. एक कैंपेन चला, हम सभी को पता है. इन द लास्ट लेक्चर आई डेल्ट विद द यूक्रेन रशिया क्राइसिस एंड देयर आई टॉक्ड अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. हुआ क्या कि रशिया ने फर्स्ट अटैक किया, दे इन्वेडेड क्राइमिया एंड दैट वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन. दे डिडंट कॉल इट एन अटैक और समथिंग. 2014 में इन्होंने जो पेनिनसुलर रीजन है, ये फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, ये सपोज इट्स अ ब्लैक सी और ये यूक्रेन का रीजन है, तो ब्लैक सी ऑफ अजोव के पास यहाँ एक पेनिनसुलर रीजन है, कर्ट स्टेट है. यहाँ पर एक रीजन है क्राइमिया. 2014 में रशिया इन्वेडेड क्राइमिया एंड टुक ओवर कंट्रोल. यूएस वाज लाइक कि आप ऐसा नहीं कर सकते. आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है. यू कैन नॉट जस्ट ओवर पावर एनीवन. तो दे इम्पोज कार्ट्सा. व्हाट डज कार्ट्सा मीन? सिंपल लैंग्वेजेस में कार्ट्सा का मतलब होता है सैंक्शंस. ठीक है, आप किसी कंट्री पे रोक लगा देते हो.
आपने कहा, सपोज बहुत सिंपल टर्म्स में समझिए, कभी कभी क्या होता है कि यंग एजेस में आपके कुछ दोस्त बन जाते हैं, आपके जो भी गार्जियन फिगर है, दे टेल यू कि बेटा आप इनके साथ मत रहो. Why? They are imposing kind of a sanction on you. वो तो खैर they have good intentions. Obviously your parents are saying for your own good कि आप वहां मत रहो. Similarly, the US says कि अगर हमारी आपसे नहीं बनती है तो हमारे भी जितने दोस्त हैं, जितने हमारे एलाई हैं, इवन बियॉन्ड नेटो नेशंस, यू विल डू एज आई से. आप रशिया से ट्रेड नहीं करोगे, आप रशिया से मतलब किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस नहीं लोगे, आप ऑयल परचेज नहीं करोगे, ये सारी चीजें होती हैं. और फॉर द फुल फॉर्म इट मींस काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शंस. रीसेंट डेवलपमेंट्स में इंडिया को कुछ परसेंट की छूट दी गई. उस छूट के कारण इंडिया इज एबल टू बाय गोल्ड. ओके, आई एम सॉरी, इंडिया इज एबल टू इंपोर्ट ऑयल फॉर इट्स कंट्री. देखिए, हम ऑयल इंपोर्ट तो करेंगे क्योंकि हमने ऑयल अपनी पर्सनल यूज के लिए इंप्लीमेंट किया, और आप हमें नहीं बोल सकते कि हाँ व्हाई आर यू डूइंग दिस. ओके, ये हमारा प्यारा भारत, चाइना, और ऊपर ये, अरे सॉरी, ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा पड़ोसी चाइना, ये उससे भी प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, और इधर रशिया. रशिया पर सबसे पहले तो आपने काटसा लगाया. काटसा क्या होता है कि अगर आपने किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेड को इनिशिएट किया तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे. सेकंड, कोई भी डील आपकी हुई उसके चलते आप पे यूएस सैंक्शंस लगाएगा, आप पे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी जाएंगी, आप पे कुछ टैरिफ चार्जेस इंक्रीज कर दिए जाएंगे. इस पे सफर कौन करता है? ईरान इज वन ऑफ द बिगेस्ट सफरर. नॉर्थ कोरिया समवेयर हेयर, पता नहीं चल रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट. हेयर रशिया, ऑब्वियसली, they are the countries which are most affected. The next thing they did, that they kicked Russia out of the SWIFT system, that is SWIFT. ये SWIFT payment system क्या है समझते हैं. Coming to the slide. Full form, for those who want full form, it is the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. I'm repeating again, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. क्या होता है भैया इतना बड़ा टर्म, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म? कुछ नहीं है. आपके फोन में मैसेजिंग ऐप होता है. पहले जब वी वर यंग तो नया नया हैंडसेट आया था, तो उस पर मैसेजेस होते थे, जो नोकिया 2626 का मॉडल था, उस पर मैसेजेस होते थे डायरेक्ट थ्रू पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी. अभी यू हैव फेसबुक, यू हैव व्हाट्सएप, यू हैव एवरीथिंग. वैसे ही एक नेटवर्क है स्विफ्ट, एक सिक्योर नेटवर्क है, दैट इज एक्सेप्टेड बाय कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा देश है भारत, इंडिया. हमको क्या करना है, हमने फ्रांस को बोला कि डियर फ्रांस, हमने मोदी जी को भेजा आपके पास, वी वांट 36 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स फ्रॉम यू अंडर द प्रोजेक्ट P75 या P75I, जो बोलिए. हम आपको फॉर एग्जाम्पल $100 million दे रहे. खैर $100 million इज जस्ट अमाउंट टेकन फॉर एग्जाम्पल, 100 million बहुत कम होती है. तो फ्रांस है, ठीक है भेजो, आप भेजो, वी विल डिलीवर यू, पर शर्त यह है कि हमारे यहाँ तो कोई रुपी यूज करता नहीं, कैसे भेजोगे आप? और अगर रुपी की डिमांड नहीं है तो हम उस मनी को सर्कुलेट कैसे करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इंडिया सेड नो वरीज माय फ्रेंड फ्रांस, वी will direct our bank to send $100 million
in terms of rupees. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर एक्सचेंज रेट 2082 पॉइंट समथिंग है अप्रोक्स एनीथिंग, वो उसके हिसाब से उस चीज को भेजेगी स्विफ्ट नेटवर्क में. व्हाट विल स्विफ्ट नेटवर्क डू? ये बेसिकली एक इंटरफेस है, ये एक कमांड देगा ये कमांड देगा बासेल में बैठी हुई बैंक को. बासेल एक जगह है स्विट्जरलैंड में, दैट आई डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. बासेल 3 नॉर्म्स पे आरबीआई काम करती है, द डीमोनेटाइजेशन थिंग एंड ऑल. बासेल में जो बैंक होगी वो इस कमांड को एक्सेप्ट करेगी, एंड व्हाट दे विल डू, दे विल कन्वर्ट द मनी इनटू द रिस्पेक्टिव डॉलर्स. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रुपी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं डॉलर में, ताकि फ्रांस उसको एक्सेप्ट कर सके, फ्रांस या कोई भी कंट्री एक्सेप्ट कर सके. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट. ठीक है, ये था स्विफ्ट सिस्टम, इससे रशिया को दिया गया निकाल. ठीक, अब सवाल ये उठता है कि सर आपने तो रशिया को निकाल दिया, सिंस रशिया इज आउट ऑफ द बॉक्स, हम अपना ट्रेड सेटलमेंट कैसे करेंगे रशिया से? तो India and Russia together formed a new concept of the Nostro and Vostro accounts. ठीक है, what does Vostro mean? और एक क्लियर स्लाइड ले लेते हैं, या सपोज दिस स्लाइड है. ठीक है, Vostro, सपोज दिस इज सम कंट्री, यूएस या रशिया फॉर एग्जांपल. रशिया क्या करेगी, एक अकाउंट खोलेगी इंडिया में, उसको कहेंगे हम वॉस्ट्रो अकाउंट, और इंडिया का एक अकाउंट होगा रशिया में जिसको कहेंगे हम नोस्ट्रो अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन एक्सपोर्टर है, उसने अपने माल को एक्सपोर्ट किया, एक रशियन कंपनी है, खैर अभी तो रशिया ब्रह्मोस की इंपोर्ट करने की बात कर रही है क्योंकि ड्यू टू वॉर दे आर गेटिंग आउट ऑफ द स्टॉक्स. रशियन बैंक क्या करेगी, वो इंडियन नेशनल करेंसी को करेगी रिटेन. एक्सपोर्टर ने क्या किया, उसने दी रुपी. ठीक है, रशियन बैंक एक्सेप्टेड द INR with respect to his Nostro account, which was sent by the Vostro account. अब इसने रूबल में पे करा, इट विल कन्वर्ट रूपी इनटू रूबल. ठीक है, रूपी को रूबल में कन्वर्ट कर दिया गया. रशियन क्रूड ऑयल कंपनी के पास रूबल आ गया, इसने इंडियन रिफाइनिंग कंपनी को बेचा, इंडियन रिफाइनिंग कंपनी में ने वॉस्ट्रो अकाउंट में इंडियन नेशनल करेंसी यानी कि रुपी में पे करा. और ये एक साइकिल, ये आप एक सेल ऑब्जर्व कर सकते होंगे कि दिस साइकिल इज कंटिन्यूइंग इट्स प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ वॉस्ट्रो. यहां तो खैर नॉस्ट्रो नहीं मेंशन किया इन लोगों ने, यहां नॉस्ट्रो होगा, यहां वॉस्ट्रो होगा. नॉस्ट्रो अकाउंट उस कंट्री में खुलेगा जो करेंसी को भेजेगी, और नोस्ट्रो अकाउंट उस कंट्री में होगा जो पार्टिकुलर कंट्री की करेंसी को एक्सेप्ट करेगी. होप आई एम क्लियर, अदरवाइज आई विल टेक द क्वेश्चंस, नो वरीज. ये सारी चीजें हो रही थी वॉस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट में. अभी रिसेंटली इन न्यूज इट वाज ऑब्जर्व, इट वाज अ रिपोर्ट ऑफ वाइन के इंडिया इज यूजिंग चाइनीज करेंसी रेन मिली और युआन. तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी कि हमें मजबूरी में आकर के इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमें इस चीज में ट्रेड करना होगा. रीजन ये था, सिंपल रीजन ये है कि देखिए आपके पास फॉरेक्स रिजर्व जो होता है वो लिमिटेड होता है. फॉरेक्स रिजर्व ऐसा नहीं है कि मतलब इट विल नेवर एंड, इट इज गोइंग टू एंड. ठीक है, दिस इज द डेटा आई कलेक्टेड. द सोर्स वाज फ्रॉम द प्रशांत धवन सर्च वीडियो, और he gets his sources from the government of India website. चाइना के पास आप देख सकते हैं कि how much reserve do they have. Move please. Wait on a second. Yeah. Reserves in millions in US dollars. Look at this figure and look at this figure.
$600 billion, और ये तो भाई साहब ये लोग तो ट्रिलियंस में। आप यहाँ पर यूएस का नाम नहीं देख रहे होंगे। वाई यूएस की करेंसी है, वो कभी भी प्रिंट कर सकते हैं, इवन दे आर नॉट देयर। रीजन ये कि करेंसी ही उनकी है। दिस इज अ वेरी रीजन, दे कैन प्रिंट इट आउट ऑफ थिन एयर एनी टाइम। और काफी सारी कंट्रीज की अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं कि वो अपने फॉरेक्स को कुछ लोग गोल्ड्स में रखते हैं, कुछ बॉन्ड्स में रखते हैं, कुछ अलग चीजों में रखते हैं। और एसडीआर जो होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, उसमें सबका कोटा होता है। तो ये सारी बातें होती, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि वाई इज डॉलर सो लीथल। अभी डी डॉलराइजेशन की बात हो क्यों रही है? सी, अल्टरनेट पेमेंट रूट इसलिए अपनाया गया था क्योंकि रशिया पर आपने लगा दिया सैंक्शंस, कंट्रीज होन ट्रेड कर नहीं पा रही। रशिया इज अ वेरी गुड ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। रशिया यूक्रेन वॉर से ये पता चला कि यूएस इज वेपनाइजिंग द डॉलर। ये सैंक्शंस लगा रहे हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं, वेपनाइज कर रहे हैं, और जियो पॉलिटिकल सिनारियो को ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे आई previously mentioned about Iraq, China, North Korea and Russia. Now let me tell you how this happened. क्योंकि फिर till you guys don't know what is happening, there will not be any meaning to explaining all this. What happened in the late 1920s? World War One start हुआ, sorry, World War Two का time end हुआ, that was from 1914 onwards. इस पे यूएस ने एक बड़ा गेम करा। They exported their material, that is their finished goods, and imported gold. इन्होंने क्या करा कि इन्होंने गोल्ड को इंपोर्ट करा, भारी मात्रा में गोल्ड को इंपोर्ट करा, बिकॉज ब्रिटेन, इन लुटेरों ने जितनी चोरी करी थी, काफी सोना था इनके पास। इवेंचुअली व्हाट द यूएस डिड, इट pegged the dollar with gold. It was again some natural resource. Then in the year 1954, the international trade started to be conducted in dollars, until the year 1971. There was President Nixon, which prohibited the pegging of gold against dollar. ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने डॉलर को सुप्रीम बनाना था। ये नहीं चाहते थे कि डॉलर विल बी सब्जेक्ट टू एनी नेचुरल रिसोर्स। क्योंकि देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस पेगिंग के हटा तो करने का कारण पहले समझिए। पेगिंग करने का कारण ये था कि एक समय के टाइम ऐसा हो गया कि अमेरिका के पास जितना गोल्ड था उतना किसी के पास था नहीं। फिर उन्होंने डी पेगिंग करी इन द ईयर ऑफ 1971, क्योंकि अब गोल्ड तो बाकी कंट्रीज भी ऑब्टेन कर सकती हैं, क्षमताएं डेवलप हो रही हैं। यूएस ऐसा चाहेगा कि उससे आगे कोई निकले नहीं, तो उन्होंने पेगिंग टर्म को हटा दिया। अब आप डॉलर में करोगे भैया, डॉलर इज द सुप्रीम। 2007 और 8 में सबप्राइम क्राइसिस आया। सबप्राइम प्राइस क्राइसिस आई हैव ऑलरेडी डेल्ट इन माय प्रीवियस लेक्चर, पर फॉर दोज हु आर न्यू, आई एम टेकिंग अ ग्लिम्स ऑफ इट। सबप्राइम होल्डर्स क्या होते हैं? बायर्स, बोरोवर्स, डेटर्स, जो भी बोले आप। जो लोग कोलेटरल नहीं जमा कर सकते हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है, उनको सबप्राइम बायर्स बोलते हैं या सबप्राइम होल्डर्स बोलते हैं। जब आप उन लोगों को लोन दे देते हो, तो यूएस ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए, उन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट्स को काफी कम दरों तक गिरा दिया। अब देखिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होगी, बैंक की इंटरेस्ट रेट सपोज 5% है, पैसा रख के तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलना नहीं, तो लोग क्या करेंगे? अपना पैसा निकालेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट लोन की, और सरकार और फेडरल बैंक क्या करेगी कि जो लोन देने का, मतलब फॉर एग्जांपल जो लोन देने का ब्याज दर होगा, फेडरल बैंक ने उसको भी काफी कम कर दिया। तो क्या हुआ? लोगों ने अपना पैसा निकाला और लोगों ने लोन लेना शुरू किया। दो चीजें होती है, आपका अपना पैसा आप उसको निकालते हो, और या फिर आप लोन लेते हो कुछ ब्याज दर पे, 5 से 6% के ब्याज दर पे, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरी करेगा, ठीक है। सब प्राइम लेंडर्स हो गए। इस टर्म को बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी, क्योंकि ये बहुत लिक्विड था। हुआ क्या कि जो सब प्राइम लैंडिंग हो गई, लोग अपना पैसा लौटा नहीं पाए, तो जो फेडरल रिजर्व थी कुछ समय के लिए क्राइसिस में आ गई। तो सिंस
Dollar has a very huge impact. Dollar is like the king of the monopoly. Is like the king of all aces. So, Federal Reserve started to print their own currency again. So they created money out of the thin air, and that's how US came back into the picture. यहाँ कुछ data है. I'll share the PDF. You can go over it. Now the next thing is after the evolution. Let us talk about the drawbacks that I already discussed. ज्यादा liquidity हो गई, ज्यादा inflation बढ़ेगा. चीजों को सिंपल टर्म्स में समझिए. आपके देश में कोई बैंक, उसने आपको 100 रुपए की नगदी उधार में दी. वो 1 साल के बाद आपसे 5% यानी 105 रुपए पर वो पैसा वापस ले लेगी. नॉर्मली आपको 108 रुपए चुकाने होते थे, लेकिन आपको 105 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं. तो आप अपने घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए आप लोन को ले लीजिएगा. आप जब लोन को लीजिएगा, क्योंकि ब्याज दर सस्ते हैं, तो क्या होगा कि मनी की मार्केट में जो M1 सप्लाई है, दिस आई हैव ऑलरेडी डेल्ट इन प्रीवियस लेक्चर्स, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, M1 मनी कुछ नहीं होती है. M1 मनी होती है कि देश की जनता के पास जितना भी पैसा है और करेंसी और बैंक के पास नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी जितनी है, उसको आप एड ऑन कर दीजिएगा तो M1 मनी हो जाएगा. बैंक के पास जितना पैसा है जो वो दे सकती है, बस सिंपल टर्म्स में ये मतलब है. तो M1 करेंसी का सर्कुलेशन मार्केट में बढ़ जाएगा. अब ऐसा तो नहीं है कि आप गाड़ी खरीदिएगा, आपके पास मान ले 1 लाख की गाड़ी आ गई, नैनो कार, आपने सामने वाले को भी तो पैसा दिया, वो सामने वाला उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराएगा. क्यों नहीं कराएगा डिपॉजिट? क्योंकि इंटरेस्ट रेट सस्ते हैं, कुछ मिलने जाने वाला है नहीं उनको. दैट इज द रीजन कि M1 मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो आपका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो अगर लिमिटेड प्रोडक्टिविटी है किसी भी चीज की, कि उस चीज की डिमांड बढ़ेगी, और इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. दिस इज टर्म्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. यूएस में यही डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुई. डिमांड इंक्रीज हुई, पैसे की वॉलेटिलिटी बहुत आई थी, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि पैसा अब उतना हुआ नहीं, तो हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना पड़ेगा. होगा क्या कि सेंट्रल बैंक को वापस पैसा लेना पड़ेगा, M1 करेंसी को रिड्यूस करना पड़ेगा और हाई पावर मनी यानी कि M0 करेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा. आई विल डिस्कस द एंटायर थिंग सम अदर डे. बेसिक्स के लिए इतना काफी था. ठीक है, अब देखिए डी-डॉलराइजेशन पे अगर हम वापस आते हैं तो चैलेंजेस क्या है. somebody would you please clarify, am I audible or not? You are audible. Okay sir, thank you. ठीक है, चैलेंजेस क्या है डी-डॉलराइजेशन के साथ. तो पहले इकोनॉमिक्स का 2 बेसिक प्रिंसिपल समझिए. जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, आई एम हियर टू क्लियर एवरीथिंग. 2 तरह की कन्वर्टिबिलिटी होती है. सबसे पहली बात तो एक करंट अकाउंट कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी होती है और एक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है. ये C और CA से समझिए. ठीक है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लेमैन लैंग्वेज में ये है कि सपोज मुकेश अंबानी है, उनको गाड़ी खरीदनी है पोस्टा. ठीक है, इनकी जिद हुई कि भैया हमको ये गाड़ी लेनी है. इन्होंने ये गए आरबीआई के पास है, डियर आरबीआई, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, आई एम गिविंग यू रुपीज, गिव मी डॉलर्स. आरबीआई अगर करंट अकाउंट कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी को फॉलो करेगी तो आरबीआई से यस मुकेश जी, हैव इट, गो बाय द पोर्शन, एंजॉय योर राइट. ये होती है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. इन सिंपल टर्म्स, अगर आप किसी भी करेंसी को बहुत आसान तरीके से जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं या बहुत आसान तरीके से कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तो वो जो कन्वर्टिबिलिटी का फैक्टर हुआ उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, सॉरी करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी.
In books, in NCRTs, you will find it very complex. This is the simplest I can conclude. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है कि आरबीआई कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, स्पेशली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक हम हैं, इवन चाइना भी अभी तो डेवलपिंग कंट्रीज नहीं आ रहा, ये सारे लोग, इन सारे कंट्रीज की जो फेडरल रिजर्व बैंक्स होती हैं, यानी आरबीआई या सेंट्रल बैंक्स होती हैं, ये करेंसी को मिटिगेट करती हैं। मिटिगेशन से कहने का मतलब ये है कि चाइना को, आपको पता होगा कि चाइना इज फेमस फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी और मोस्टली दे डीवैल्यू देयर करेंसी। डीवैल्यू क्यों करते हैं भैया? ऐसा इसीलिए है डिवैल्यूएशन के कारण कि जब आपकी लोकल करेंसी की वैल्यू कम होगी तो आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। जब बाहर वाले को पता होगा कि माल सस्ते में मिल रहा है तो वो आप ही से खरीदेगा, क्यों वो दूसरे दुकानदार के पास जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए सिमिलरली आरबीआई ऐसा कुछ करती है ताकि जो वॉलेटिलिटी हमारी लोकल करेंसी में, देखिए बात को ऐसे समझिए कि करंट अकाउंट कैपिटलिटी कन्वर्टिबिलिटी हमेशा दो वेज चलती है। अगर आप डॉलर को आसानी से निकाल और जमा कर सकते हैं तो आप पैसे को भी आसानी से निकाल और जमा कर सकते हैं। हमारी कंट्री वेलफेयर स्टेट है, हमें काफी सारी फ्री स्कीम्स चलानी है, फॉर एग्जांपल पीडीएस चलाने हैं, और आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स है जो बैंक की तरफ से होती है, जो क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज में आती है, वो सब अलग चीजें हैं। इन सारे चीजों के चलते हमें अपने करेंसी पर एक लगाम लगानी पड़ती है। तो आरबीआई एक एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है, ठीक है। अगर डॉलर्स बहुत कम हो जाएंगे तो डॉलर खरीदा जाएगा, डॉलर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डॉलर को बेचा जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है जो आरबीआई करती है। इसीलिए आपने देखा होगा बीच में जब कोर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो 82 के अबव चली गई थी हमारी करेंसी, जिसको बाद में आरबीआई ने काउंटर किया था, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड ये कहता है कि जो 60% ऑफ द ट्रांजैक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर सब्जेक्टेड टू यूएस, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब क्या हुआ कि वाई इज द करेंसी सो, मतलब स्टेबल एंड सो एक्सेप्टेबल? पहली बात तो यूएस एक स्टेबल कंट्री है, कोई मार धाड़, कोई वॉर, कोई खून खराबा वहां होगा नहीं एक्सेप्ट लोकल राइट्स और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है दूसरा कारण। तीसरा कारण है ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है, और चौथा है ओपन डेमोक्रेसी। ओपन डेमोक्रेसी है, कल को अल साल्वाडोर जैसा नहीं हो जाना है कि नहीं हम भैया बस बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे। बिटकॉइन क्या होती है? आई डील इट समटाइम। ये चार बेसिक कारण है, कारण तो हजार है लेकिन इन चार बेसिक कारण को समझिए। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज व्हाई आई डिस्कस द आइडिया ऑफ इंडिया। सेकंड, वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, लोग एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है, भैया कहीं भी जाइए, किसी भी देश में जाइए, $2 दे दीजिए, एक बर्गर ले लीजिए। ईज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ओपन डेमोक्रेसी की कल को कोई तानाशाह के ये नहीं बोलेगा नहीं मेरे को ये करेंसी नहीं चलानी, कल से हम सोना चलाएंगे, ये नहीं होना है। चाइनीज युआन फिर भी अभी भी एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? पहली बात तो क्लोज पॉलिटिकल सिस्टम, रीजन ये कि कम्युनिस्ट रीजन है, टोटैलिटी में चलती है ये कंट्री, कब क्या अपने चीज को डिफ्लेट कर देगी कोई ठीक नहीं। और जो इंटरवेंशन होती है चाइनीज अथॉरिटी की, वो सारी चीजें। सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन ये था कि जो कैपिटल है उसको रेगुलेट किया जाए। देखिए इंडिया को बनना है ग्लोबल पावर, सभी को पता है इंडिया को बनना है ग्लोबल पावर। कैसे बनोगे भैया ग्लोबल पावर? हंगर है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रह रही है, देश में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन सारी चीजों के रहते कैसे बनोगे ग्लोबल पावर? मोदी जी ने बोला टेंशन नॉट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हम रुपी की डिमांड बढ़ाएंगे। ये जो भी डील्स होती है, मोदी जी बाहर जाते हैं, सी
not a supporter, very big supporter of this government. But with respect to foreign relations, this government has worked very well. This is my personal opinion. Baki, you can have Congress too or any other political party. Let's get to the point. देखिए सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी आपकी यूएई से। यूएई सेड कि हम अपना नेटवर्क बनाएंगे। आप इस मीम में देख सकते होंगे कि मोदी जी और शेख साहब मिल रहे हैं और दे सेड कि हम जो ट्रेड करेंगे ना वो लोकल करेंसीज में करेंगे। इससे क्या होगा कि जो रूपी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। रूपी की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। क्या बताया था मैंने आपको? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड होगी तो उस चीज को बनाया जाएगा। मुझे नाइकी की शूज पसंद है, मैं नाइकी की शूज खरीदता हूं तो कंपनी नाइकी की शूज बनाती है। मुझे नाइकी की शूज नहीं खरीदनी तो नाइकी कुछ और बनाएगी। ऐसे चलता है। इसलिए अभी इंडिया और यूएई के बीच डील हुई कि यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है इसको एक्सेप्ट किया जाएगा जब बहुत जल्द फ्रांस में। यूएई बहरीन जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुकी हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं करंट इवेंट्स पे। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग के ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल डेटा है, आई हैव टेकन इट, कि जो वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट्स है इनका साफ कहना था कि हमारा टारगेट ये है कि जो टोटल रिजर्व्स है इन फॉरेन करेंसी एसेट्स, हमारा टारगेट ये रहेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन एंड मार्च 2023 हम यूएस डॉलर्स को कम करेंगे, ठीक है। हम यूएस डॉलर्स को मेंटेन नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम अपनी करेंसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सेफ्टी के लिए हमने एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स को एक्सक्लूड कर दिया और 7 कंट्रीज जो हैं हमारी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान टू बिम्स्टेक में आप पाकिस्तान को ऐड कर दो वो सार्क हो जाएगा, ठीक। तो हम डॉलर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। De-dollarization. De-dollarization is nothing but the reduction of the use of dollars and the use of local currency in place of the US currency. अब challenges पे आते हैं कि भैया कर तो लोगे, challenges क्या है? पहला चैलेंज ये है कि अभी भी द गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी मच, तो हम गोल्ड पे पैक कर नहीं सकते। सेकेंड चीज कि वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री दिक्कत यह है कि हमें यूएस से डिपेंडेंट होना ही होगा। हमने S-400 लिया, हमने परचेज करा, फिर हमने रफाल फाइटर जेट्स को इंपोर्ट करा फॉर द मिलिट्री। अभी देखिए कंफ्यूजन ये हो जाता है काफी लोगों को कि रफाल तो अभी मंगाया था फिर क्यों मंगा रहे हो? वो नेवी के लिए। अभी जो रफाल्स आएंगे वो दैट इज फॉर नेवी, नॉट फॉर आर्मी, ओके। तो हुआ क्या कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लास्ट ईयर को आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल जेंटलमैन टू टर्न ऑफ द माइक प्लीज। फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे, हेलो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू $525 बिलियन। ये था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम ऐसा चाहते नहीं थे। इस वक्त हमारी फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हो चुकी है टू $600 बिलियन और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने डॉलर डिपेंडेंसी को कम की है। डॉलर डिपेंडेंसी कम हुई और करंट से अगर इसको मैं रिलेट करने की कोशिश करूं तो एक BYD कंपनी है। BYD कंपनी का फुल फॉर्म होता है बिल्ड योर ड्रीम्स, लिटरली ये चाइनीज कंपनी है। इसने कहा कि देखो जी 2-3 साल पहले कि हम इंडिया में $1 बिलियन का प्लांट सेटअप करेंगे और हम ना साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे और इंडिया को जो है
डॉलर्स में पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, ये एक स्टेप होगा डी-डॉलराइजेशन के ऊपर। पर इंडिया ने मना कर दिया, ना भैया चाइना ने। और अभी जो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, जिसमें अजीत डोवाल साहब की मीटिंग हुई थी वांगी से, जो चाइना के हैं, अजीत डोवाल साहब ने काफी स्ट्रिक्ट टर्म्स में कहा कि जब तक आप बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं करते, इंडिया वोंट ट्रस्ट योर क्रेडिबिलिटी। दैट वाज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अजीत डोवाल साहब। देन चाइना, पता है, व्हेन आई वाज कवरिंग दिस न्यूज, चाइना लिटरली बेग्ड, चाइना लिटरली बेग्ड कि आप BYD को इन्वेस्ट करने दो, बिकॉज चाइना इज इन डायर नीड फॉर कैपिटल फ्लोज इन इट्स ओन कंट्री, क्योंकि चाइना में भी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कम्युनिस्ट डिजाइन है, तो ये खबरें उतनी आती हैं नहीं। ये रिसेंट रिपोर्ट्स हैं। Wongi, as you can see, he has replaced the current foreign minister due to some internal conflicts, इसलिए Wongi आपको दिख जाएंगे। इंडिया को झटका कब लगा? सी, वियतनामीज कंपनी है फॉक्सकॉन, हम लोग काम कर रहे हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर, जो सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी है। हुआ क्या कि फॉक्सकॉन और वेदांता एक जॉइंट वेंचर करने वाले थे। ये सेटअप होने वाला था महाराष्ट्र में, बाद में गुजरात में शिफ्ट होना था। ये वेंचर करने वाले थे और इनका ये था कि अभी जो आप लैपटॉप 1.5 से 2 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, अगर हम सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर लोकली करने लगे विद द हेल्प ऑफ फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, तो वही लैपटॉप जो आपको 2 लाख का पड़ा था, वो आपको 40,000 का पड़ेगा, बस 40,000 रुपए का पड़ेगा। और जो आईफोन के प्राइसेस आप अभी देखते हैं कि 1.5 लाख 2 लाख, ये सारी चीजें, उसमें आपको रिबेट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ कारण के चलते, कुछ कारण मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि दैट वाज द इंटरनल इश्यूज ऑफ द कंपनीज, दैट इज व्हाई दे पुल्ड आउट। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट है कि घबराने की बात नहीं है, फॉक्सकॉन कहीं गई नहीं है, नई कंपनी खोजेगी फॉक्सकॉन, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर होगा। हाँ जी, आप ये समझ सकते हैं, ये आप जरूर समझ सकते हैं कि जो प्लांट 2027-28 लग सकता है। काफी सारी कंट्रीज डी-डॉलराइजेशन के ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल ईयूज एम्बिशंस 43 बिलियन यूरो प्लान, ये भी चिप मैन्युफैक्चरिंग पर है, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हमें सस्टेन करना है। दैट वाज कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। Even India is investing $10 billion, that is the news from the Economic Times। और चैलेंज सबसे बड़ा यही है हमारे पास कि आर वी एबल टू सस्टेन इट। सी, फॉक्सकॉन के साथ इशू क्या हुआ था, हम इवन कवरिंग द इशू कि फॉक्सकॉन क्यों पुल आउट हो गए, ताकि कोई पॉलिटिकल डायनामा न क्रिएट हो। फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सेमीकंडक्टर बनाने में, तो इनको एक बड़े प्लेयर की जरूरत थी। वेदांता इज अ गुड कंपनी, पर दिक्कत ये था कि दोनों कंपनीज इनएक्सपीरियंस थी। अब आप एक कंपनी सेटअप करते हैं तो आपको वहां पे प्लेस खोजना होगा, आपको टैक्स रिबेट्स चाहिए होंगे, किस सेटअप किस माइंडसेट से आप आ रहे हो, क्या हायरिंग रेट होगा, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, एक्सचेंज रेट्स क्या चल रहे हैं, सब देखना पड़ता है। अभी क्या करेगी, इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। फॉक्सकॉन क्या करेगी, एक बड़े प्लेयर को लेगी। सपोज को यूएस की कंपनी आ सकती है, वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर सकती है और ये दोनों मिलकर के एक जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। तो दैट इज द फ्यूचर ऑफ डी-डॉलराइजेशन। द क्वेश्चन इज, क्या सबसे बड़ा रुपया होगा? देखिए, दिक्कत ये है, द प्रॉब्लम विथ convertibility is India developing nation है, मेंशन किया, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इट इज अ डेवलपिंग नेशन। दिक्कत क्या होती है कि हमें काफी सारी स्कीम चलानी पड़ती है, उसके लिए हमें एक स्टेबल करेंसी की जरूरत है। और अगर हम करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर देते हैं हमारे देश में, तो होगा क्या कि पैसे की फ्लाइट, कैपिटल फ्लाइट बहुत बाहर हो जाएगी। सी, एफडीआई तो बढ़ेंगे, नो डाउट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको
किसी भी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में आपको खुद को रजिस्टर करना होगा सेबी के थ्रू। एफडीआई जो डायरेक्ट पैसा आता है आपके पास, ये अंतर है इन दोनों चीजों में, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ईसीबी का एक कॉन्सेप्ट है कि सपोज एक कंपनी है, सपोज हमारे अंबानी साहब है, अंबानी साहब सेड कि हमको चाहिए पैसा $100 मिलियन, क्यों रिलायंस को एक्सपैंड करना है। आरबीआई से परमिशन देगी कि साहब हमको इजाजत दो, हमको फेडरल रिजर्व से पैसे लेने हैं, हम लेंगे और एक्सपैंड करेंगे, आरबीआई विल अलाउ इट। लेकिन अगर करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग तो वापस भी तो जा सकती है। इस टर्म को कहते हैं कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट इस टर्म को कहते हैं कि कभी भी किसी भी कंट्री से आप कभी भी पैसा इकट्ठा कर सकते हो। ये क्राइसिस हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में एक्चुअली क्या हुआ था कि सबप्राइम क्राइसिस के दौरान ही जब ये सारी क्राइसिस हुई तो जितने भी स्टॉक इन्वेस्टर्स है दे जस्ट पुल्ड आउट देयर मनी। तो अगर आप इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में जिसको पैसे चाहिए आप अचानक से पुल आउट कर जाओगे तो इट विल कॉज अ कंप्लीट क्रैश ऑफ इकोनॉमी। सैलरीज कैसे पे होंगी, वेलफेयर स्कीम्स कैसे चलेंगी, गवर्नमेंट एक्टिविटीज कैसे चलेंगी। यही कारण है कि पाकिस्तान आज सफर कर रहा है और यूएस अभी भी अपनी मौज। सो दैट वाज इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन एरिया। थैंक यू सो मच। दिस इज माय ईमेल आईडी, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल गिव द पीडीएफ टू एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी क्योंकि रेस्ट ऑफ द एप्स पे मैं हूं। So that was it from the presentation area. Thank you so much, everyone. Now, any questions from the topic, I'll entertain. Yeah, thank you very much, Harshvardhan ji. Very well prepared, with thoroughly useful lecture you delivered today. Thanks on my behalf, and thank you very much. Now, my question is that you told about foreign reserves and other issues you discussed. We say our government says कि by 2030 it will be a third greatest economy in the world, and India would be a superpower in the days to come. Whatever you have mentioned here, India is running so many social welfare programs. Even some of the states, the government providing free scheme. And they are even Delhi also. You see the water is free, electricity is free, and because it is a democracy, so government they are also tempted to deliver free many schemes to the citizen just for the sake of money. So would it be possible on the part of India to become a third economy in the days to come? So my question is this one. Uh, so, pragmatically speaking, if taking practical things into account, political pitch एक अलग टर्म हो जाता है और जो आपका करंट डेवलपमेंटल टर्म है वो एक अलग टर्म हो जाता है। बात यह है कि अगर आपको लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है तो देयर आर मेनी सेक्टर्स इन विच there are many sectors in which you can contribute. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको वेलफेयर स्कीम्स चलानी ही है, आपको अपने लोगों को हेल्प करना ही है, तो आप किसी और सेक्टर पर ध्यान दे सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट कर दो, आप एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट कर दो। जी हाँ, जी हाँ। आप टैक्स रिपोर्ट आप रिबेट दे सकते हैं। आप सारी चीजों को एक साथ कल्मिनेट कर सकते हैं। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी आप एक एक्सटेंट तक तो कर ही सकते हैं। यू आर अ मेजर बैंक ऑफ द कंट्री, आप इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। You can do this. Or the way India is receiving the FIIs and FDI especially, it is very possible for India in the next few years to come. When I was discussing about how a country is becoming a superpower, the thing is कि आपके पास एक strong military भी होनी चाहिए, आपके पास strong society भी होनी चाहिए। क्योंकि सर यहाँ बात बस पैसों की नहीं होती, यहाँ बात आ जाती है एथिक्स की, कि अगर आपकी जनता आपसे खुश नहीं है तो वो देश कभी विकासशील नहीं हो सकता। हम आगे जरूर बन सकते हैं, बट थिंग क्या है कि हमें एक बहुत मार्जिनल बाइफर्केशन करना होगा। हमें मॉनेटरी टर्म्स को अलग कर देना होगा और जो सोशल वेलफेयर टर्म्स है उनको अलग कर देना होगा। हाँ, freebies, I accept sir that freebies are a destroyer of the country,
जैसे अभी जो सदर्न इंडिया में इलेक्शंस हुए, इन्होंने कह दिया कि हम फ्री में अनाज देंगे, ये देंगे। इन्होंने देखा नहीं कि बफर स्टॉक एक्चुअली है हमारे पास कितना। Then the government said कि नहीं, we will not be able to provide you, and they are like the BJP is hampering our developmental process. I'm not a supporter of any political party to be honest, लेकिन बात ये है कि pitching must be separated from the concept of welfare. तभी भारत देश एक सुपर पावर बन पाए। Thank you very much. I'm perfectly satisfied with your answer. Thank you very much. हर्ष जी, मुझे भी पूछना चाहिए, ये बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने किया था। 2030 में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली बात, वो उसको आपने बड़े अच्छी तरह समझा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेसिक क्वेश्चन तो लास्ट पोर्शन जो था आपका, वेयर वी आर डिस्कसिंग द करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, एंड वो ठीक से मैं समझ नहीं पाया था, इसलिए मैं चाह रहा था कि एक बार फिर से समझाएं। क्यों कि ये आपने ये कहा है कि जो सबसे बड़ा रुपया वाली बात जो है, तो ये बायलैटरल अरेंजमेंट जो हम लोगों ने किया है कुछ कंट्री से, तो इट इज डायरेक्टली हिटिंग the prospects of the US dollars. So how is USA looking at it? How is, because ये जो process है which has been set in motion by India, which is likely to be followed by, maybe, I'm not sure, by other nations, which will directly hit the prospects of US dollars. So how is US dollar looking at India in respect of its political relationship on account of this unfriendly, it might look to the US political powers that this is an unfriendly move. If it is only for smoother functioning of our foreign exchange situation, then possibly it might not be objected to. But if it is an ambitious program, if it is an ambitious program in the sense that we would like to reduce the importance of US dollars in the world economy, and India is the country which is casting the first stone against the US. How is it politically being looked upon? Thank you. पूछना था। Thank you so much, sir. Sir, the basic thing is, I'd like to divide my answer into 3 points. Like, I like this question very much. I'm sharing my screen again. Is my screen visible to everyone? नहीं, वो तो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी आई एम लुकिंग एट ओनली द आईफोन, वो क्लियर नहीं आता है। एनीवे, मैं समझ लूंगा अगर आप। Is it visible now, sir? हाँ, now it is visible. Yes, it is visible. Yes. Thank you. Oh. This is India, sir. Or let us look at the location of US. Pacific है बीच में, इधर है चाइना। यस सर, हमारी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि साउथ कॉपरेशन की बात चल रही थी। रिसेंटली व्हेन आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑनरेबल जयशंकर साहब in a meeting in the G20 meetings, he said about the south cooperation. US knows about this. US यहां से नहीं आ सकता सर। ये जो आप बड़ा सा रूट देख रहे हो, यूएस यहां से नहीं आ सकता। कहां से आ सकता है यूएस अपने सेंटर्स डेवलप कर सकता है, बीट इन अफ्रीका और बीट इन इंडिया, हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के एरियाज, और ये जो एरिया है मलेशिया के नीचे वाला एरिया और इंडोनेशिया के ऊपरी एरिया जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यूएस वांट्स द एक्सेस ऑफ इट। अगर यूएस को इसका एक्सेस हो जाता है तो
इनको चाइना को काउंटर करने में आसानी होगी. China will be easily countered. And the second reason is, sir, कि the only country which is capable of threatening China is India. तो यहाँ बात उस बात की है कि आपका कम दुश्मन कौन है. इंडिया हैज अ वेरी क्लियर स्टैंड कि हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे. वी आर वर्किंग ऑन आवर इंटरेस्ट, बट चाइना इज लुकिंग देम आई टू आई एंड सेइंग कि वी आर नॉट यूजिंग इट. कुछ साल पहले यूएस imposed sanctions on China for the 9-dash line thing here in this region. In this very particular region, I'm zooming in. जहां 9-dash line का मुद्दा था, यूएस ने sanctions लगाए. The very funny part is, चाइना ने रिवर्स में sanctions लगाए थे. तो चाइना को काउंटर करने के लिए क्या है आपके पास? श्रीलंका बिक चुका है. पाकिस्तान को अब आप कंट्री माने ना माने बात बराबर है. अफगानिस्तान की क्या स्थिति है सब कोई जानते हैं. ये कंट्रीज इनसिग्निफिकेंट हो गई हैं और बस बचा रशिया जो कंप्लीटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है. तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? इंडिया इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट. और जो पॉलिसी ऑफ प्लीजिंग है, अभी देखिए सर, China has accepted the policy of bandicoot. ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टर्म है, bandicoot डिप्लोमेसी. तो bandicoot एक मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म होता है जो धरती के अंदर छुप जाता है. तो that is what China has accepted. So what would US do to counter that? They would try to dug up the holes, or they would like to fill the holes with water. So that water supply will be done by India. Wonderful. That is why recently in this very region which I'm zooming, USA is starting to establish its base for the destroyer ships, for the maintenance of destroyer ships. क्या होंगी कि जो यूएस की destroyer ships है वो इन पोस्ट पर आएंगी, उनका रिफ्यूलिंग होगा, उनका मैनेजमेंट होगा. अब सवाल काफी सारे लोग ये करेंगे कि कैसे इंडिया कर पाएगी, हमारी तो खुद टेक्नोलॉजी नहीं है. यूएस वेंचर्स यहाँ पे आएंगे एंड दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. इन अदर वर्ड्स, this area will be countered. This South China Sea will be countered with respect to 9-dash line, and in the east, in the Philippines Sea, the influence of China can be countered. So India is the only hope. That is why we will not have an adverse view from US. No, sir. वेरी नाइस. बहुत सुंदर. सो ये कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात है. यस सर. कहीं पर निगाहें. वंडरफुल. बहुत अच्छा हर्ष जी. You are asset of India, not only of India but of entire world. You are going to be an asset also. बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने किया है. बहुत अच्छा. अमृता, you want to say something? Amrita, you want to say something? Amrita, you want to say something? She must be doing her work in the kitchen. Okay. और ये नागेश जी बोलिए. अच्छा हर्ष जी, टाइम बहुत हो गया, 9:06 हो गया. हर्ष जी, आपसे एक बहुत ही जीता जागता सवाल है. ये आपका पर्सनल अनुभव, स्पेकुलेशन, भविष्यवाणी पर आधारित है. भारत अपना रुपया लेके अमेरिका में कब चाय पिएगा? भारत मतलब नागेश झा, हर्ष जी, अमिताभ जी, हमारे जेब में रुपया रहे, हम वहां चाय पिए. ये तो जर्सी में, न्यूयॉर्क में. ये कब समय आएगा? आपका पर्सनल अनुमान. सर, भारत को फिर अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल डिपेंड कर देना. सर, अगर प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू रहा, अगर प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो बाय द ईयर 2050 जो कन्वर्टेबिलिटी है उसको यूएस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. रीजन ये है
रीजन ये है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर्स और अकॉर्डिंग टू द जियोपॉलिटिकल साउंड हमने यूएस डॉलर मैं आपके हेलो क्योंकि साउंड है चाइना जस्ट इलाइटर में नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। पहले तो इंडिया ने पाकिस्तान को शुद्ध हिंदी में बोला बर्बाद किया, अब इंडिया चाइना को बर्बाद कर रहा है। अब चाइना छटपटा रहा है क्योंकि चाइना की नब्ज इंडिया ने पकड़ ली है। बस यही मैं कहूंगा। और आप जो कह रहे हैं हो सकता है, मेरा अनुमान है उसके पहले भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भी इस चीज को भाप किया है और अमेरिका भी भारत की संस्कृति, भारत की मानसिकता, भारत का एटीट्यूड से वाकिफ है कि वो चाइना की तरह गंदा काम नहीं करेगा। इसीलिए भारत एक हाथ मिलाता है रसिया से, एक हाथ मिलाता है अमेरिका से, सारे दुनिया से, लेकिन चाइना को अच्छे से सबक सिखा रहा है, ठेंगा दिखा रहा है। हाल में ही आपने जिक्र किया, मैं आपको ऐड कर दे रहा हूं, मोदी जी ने गुजरात में ग्लोबल 4 कंपनी को बुला के सेमीकंडक्टर का ट्रस्टेड पार्टनरशिप चाहिए, वो इंडिया दे रहा है। बस वो जहां हमारी सेमीकंडक्टर हमारी मुट्ठी में आया वही दुनिया का मालिक बनेगा। बस यही है स्ट्रेटजी। मैं आपके भाषण में शेयर कर दे रहा हूं, पब्लिकली सबों को बता दे रहा हूं, जिस दिन भारत चाइना से सारा सेमीकंडक्टर का बिजनेस छीन लेगा, सारा तो नहीं, बहुत कम से कम 50%, ये मेरा अनुमान है, 50% थोड़ा अधिक कर रहा हूं, उससे कम ही, उसी में चाइना तिलमिला जाएगा। और ये अब चाइना की समझ में आ रहा है। चाइना के अब अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, अब बुरे दिन आने वाले हैं। थैंक यू। ओके, वेलकम। और मैं अजय श्रीवास्तव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने बढ़िया स्पीकर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अजय श्रीवास्तव साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? अजय श्रीवास्तव साहब, अजय श्रीवास्तव साहब, अब मैं अपने चंद्रेश्वर खान साहब से कहूंगा कि अब वो अपनी अमृत वाणी बताएं। चंद्रेश्वर खान साहब, समय बहुत हो गया है, 9:10 हो गया है। चंद्रेश्वर खान साहब, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो हर्ष जी को बिल्कुल हर्षित बहुत से, जितना धन्यवाद दें कम है। खाली एक प्रश्न हमको हर्ष जी से पूछने दीजिए। इन सारी चीजों में चूंकि आप काफी विद्वान आदमी हैं, तो रिग्नोमेट्रिक्स का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? हर्ष जी, हर्ष जी। हेलो हेलो हर्ष जी। यस सर। मेरा प्रश्न है, रिग्नोमेट्रिक्स का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि आप इसके विद्वान हैं, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा एक आध दो लाइन में यदि आप समझा देंगे तो मैं अनुग्रहित होऊंगा। रियली सॉरी टू से मैं विद्वान नहीं हूँ इस टॉपिक का, एंड रिग्नोमेट्रिक्स इज अ टर्म व्हिच आई एम फॉरगेटिंग। कुड यू प्लीज ब्रीफ इट फॉर मी, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, कभी इसको हम लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बिल्कुल विस्तार से तार करके एक एक करके चीजों को समझाया, ये हम लोगों के भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए बहुत सुंदर है। क्योंकि उस समय की आशा तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि लगभग आप अधिक जानते होंगे, मैं एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन
46-47 में रुपया और डॉलर तो बराबर था। तो कैसी किस तरह से परिस्थितियां बनी और किस तरह से इतना डिफरेंस हुआ, इन सारी चीजों का भी विधिवत यदि अध्ययन किया जाता है और हमारी जो आशाएं अपेक्षाएं हैं और भारत जिस गति से बढ़ रहा है मूल्यों को लेकर के, क्योंकि इथिक्स यदि मैनेज नहीं हुआ तो इकोनॉमिक्स कभी मैनेज नहीं होगा। जहां अर्थ अर्थतंत्र जो है वो मूल्य तंत्र को नहीं समझता है तो खतरा बने रहता है। आपने इन चीजों को बखूबी छुआ और हम लोगों को एजुकेट किया इस एजुकेशन के लिए, और एक बड़ा व्यापक भविष्य दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भविष्य के निर्माता आप लोग हैं, तो कैसे आप हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन आप लोग देख सकें, भोग सकें। और नागेश ने जो कहा है कि कैसे रुपया से चाय पिएंगे, वो यदि भारत में हम 1 रुपया में चाय पीते हैं तो अमेरिका में भी यदि 1 रुपया में चाय पी लेंगे तो वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा नहीं कि अमेरिका में हमको 10 रुपया देना। Mr. Harsh, thank you very much for a very engaging conversation. I'm just amazed as to how you linked US Constitution and the Indian Constitution and how you explained using global context. So thank you very much. I enjoyed it immensely. Very good. Amrita, I want that every time and every session you should come and you should also speak on some subject in which you are expert also, like her. I have a question from sir. मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि अमृता जी ने अमृत बानी वाला काम मेरा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों ने दोनों व्यक्ति ने मिल करके आप आगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी सबों को। सर का आना सुनना, अमृता जी का आना और हर्ष जी का बिल्कुल विस्तार से चीजों को बताना हम सबों को गौरवान्वित भी करता है और एक प्यार भरी आशा कल के लिए उसे भी समर्पित करता है। लव फॉर टुमारो एंड होप फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। यू डू वेल एंड थ्रू यू वी विल एंजॉय इट। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको प्रणाम। थैंक यू सबको प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। और हम लोग ये सपना देख लें कि हम लोग रुपया से चाय अमेरिका में पिएंगे और भविष्य में रुपए का मूल्य बहुत अच्छा होगा और हम लोग बहुत उन्नति करेंगे। और सभी को प्रणाम। और अगली बार हम लोग रविवार को ये सुनेंगे, शनिवार को दिलीप सिन्हा साहब को सुनेंगे और रविवार को सुनेंगे चाणक्य जी फ्रॉम बेंगलोर। उन्होंने अमेरिका से ये पेटेंट एंड ट्रेडमार्क पर डिग्री लिया है और उस पर वो स्पेशलिस्ट है और एक एनजीओ बेंगलोर में चला रहे हैं। पेटेंट ट्रेडमार्क क्या होता है और उसको कैसे हम लोग उपलब्ध करते हैं, उसका क्या राइट है, ये सब बारे में डिटेल में जानेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा हम लोग का स्टोर होगा, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा होगा। आपकी रिकॉर्डिंग भी बहुत बहुमूल्य है, हम लोग उसको अपने स्टॉक में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी को चरण स्पर्श, चंद्रशेखर धवन साहब को चरण स्पर्श और सभी को प्रणाम, जोशी जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। और हम लोग फिर अगले शनि रवि को फिर मिलेंगे जी। प्रणाम। थैंक यू हर्षवर्धन, कमाल का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राइट लाइक सन, राइट लाइक सन। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत उन्नति करोगे, बहुत आगे जाओगे, ये हम लोग देख रहे हैं। आपका वर्क दिखा रहा है एंड यू हैव डन ए डायनामिक वर्क। थैंक यू। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच। खान साहब को प्रणाम। I have a request, Chandri. Sir mentioned about a topic.
सर आपने क्वेश्चन पूछा था, वो आवाज नहीं आई थी मेरे तरफ वो टर्म का, आप स्पेल कर सकते हैं प्लीज? किसको? मुझे कह रहे हैं? यस सर, यस सर। रिग्नोमेट्रिक्स। ट्रिग्नोमेट्री का जो इकोनॉमिक्स में उपयोग होना शुरू हुआ, तो रीगन ने उसमें अपने हित को देखते हुए, अमेरिकन हित को देखते हुए कुछ फंडामेंटल काम करने की कोशिश की थी। सर आप ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। में ट्रिग्नोमेट्री का एक एस्पेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक्स। आई एम एक्सप्लेनिंग यू सर, इफ इट इज TRI सर ना? हाँ, TRI सर। ट्रिगोनोमेट्री का एस्पेक्ट ये है इकोनॉमिक्स में कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग अ ग्राफ, ठीक है सर, अगर आप एक्स एक्सिस पर किसी भी डेटा को प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर किसी भी डेटा को प्लॉट कर रहे हैं, और अगर उसके बीच का ग्राफ एक सर्कल है, तो उस सर्कल के डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए आपको इंटीग्रल्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आप उस डेटा को डिकोड नहीं कर सकते। वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आता है। इकोनॉमिक्स का रोल ये है ट्रिगोनोमेट्री में कि आप किसी भी क्वांटिटी को जनरलाइज कर सकते हैं, उसको डेल्टा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आपको बड़े बल्क वैल्यूज में जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी डेटा को किसी भी शेप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सॉरी सर, एट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू कैच योर क्वेश्चन। No, but you have catched it, and further we will discuss on this. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you.